sir, who is expert in the Excel field. I request CA Kirti Joshi sir, Chairman Indore branch, for the welcome address. Over to you, sir. Thank you, Rachit ji, and respected seniors in the profession and dear professional colleagues and respected chairman of the session Pankaj Shah ji and respected speaker Vijay Agarwal ji from Delhi. Good evening. It is my great privilege and honor to welcome you all on behalf of Indore branch of CARC of ICI in this 3 days Excel workshop, and I welcome to our eminent speaker CA Vijay Agarwal ji. Working as a chartered accountant or an article in any company or firm, it is always expected from us that we are perfect in the numbers as far as financial numbers are concerned. And the one tool which is very common and useful in every industry and in every country is MS Excel. And Indore branch is going to celebrate its golden jubilee year, and to make it memorable, we have come up with 50 initiatives to empower brand CA. I would like to share few of initiatives which are returnship initiative, in which we try to mitigate the hurdles of career gap by providing refresher training to female members. To maximize the knowledge of the members, we have come up with one-time registration scheme, and during the pandemic we have arranged 45 oxygen concentrators, foods, and we have also formed a COVID task force. And we have also taken initiative Mushkil Ki Ghadi Mein Hum Hai Saath, in which we help the family members of our beloved disease member for applying at various institutions and applying for the claims. And yet another ongoing initiative by Indore branch is providing training to the college students and commerce graduates so that they can think of becoming a part of the CA offices, which will certainly be beneficial for the CA firm as well. And also we have done one initiative for 50 days fitness program. हमने देखा विजय अग्रवाल सर जो हैं वो योगा में सर इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड. सो फॉर सर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमने 25 डेज का योगा सेशन भी इंदौर ब्रांच में किया. और इसी के साथ स्पोर्ट्स इवेंट जो है 30 जुलाई से इंदौर ब्रांच में स्पोर्ट्स इवेंट है. बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल एंड क्रिकेट, रनिंग, बहुत सारी कॉम्पिटिशन है. सीए ओलंपिक्स करके हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो 30, 31, 1, 7 और 8 अगस्त को सर हम आरआरसी जा रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. एंड हाँ, और सर उसमें हमने कॉस्ट बहुत कम रखी सर. 9,000 रुपीज इज द कॉस्ट और 15,000 विद फैमिली. सो 2 days प्रोग्राम है. सो वी आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर दैट थिंग. सो विद दीज वर्ड्स I again welcome you all in this webinar, and over to you, Rachit ji. मैं सर के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ. ऑल्दो सर को जब मैंने सुना था फर्स्ट टाइम, तब मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, एक्सेल में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इतना मतलब इक्विप भी हो सकते हैं और इतने नॉलेजेबल भी हो सकते हैं. ऑल्दो सर आई हैव वर्क विद SBI और वहाँ पर हमें दिन भर एक्सेल में काम करना पड़ता था. बट जितनी ट्रिक्स आपसे उस सेमिनार में हमें सीखने को मिली, सो हमें लगा कि नहीं यार, अगर कोई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर एक्सेल का ठीक से नॉलेज होता है तो हम कितना टाइम जो है सेव कर सकते हैं. तो सर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी with the experience of 28 years, and sir is founder of Champ Excel, so providing Microsoft Excel solutions and training to corporate institutions and process by using Excel and BI tools. सर को माइक्रोसॉफ्ट ने जो है मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल अवार्ड जो है वो 4 consecutive years तक दिया है, फ्रॉम 2014 to 2018. और हम पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो लेस देन 100 जो हैं वो मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल्स हैं. तो सर इज आउट ऑफ देम. सो इट्स ऑनर फॉर अस सर, एंड माइक्रोसॉफ्ट हैज इनवाइटेड सर एट देयर हेड ऑफिस फॉर 4 years during the award period. And with these words, I welcome you sir on behalf of Indore branch of CARC of ICI, and over to you sir. Thank you very much Kirti ji for giving me such a great opportunity कि मैं इंदौर ब्रांच के लिए, इंदौर जो सिटी है उसके बारे में हम भाई दिल्ली से सुनते रहते हैं, दिल्ली इतना कंजेस्टेड है, कितना क्लीन सिटी है. आई वाज गोइंग थ्रू योर वेबसाइट
और वहां से पता लगा कि इंदौर की जो ब्रांच है, सीए ब्रांच है, वो भी वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है। इतने उसमें अवार्ड जीतते हैं, पिछले 6 साल से आई बिलीव आप लोग जो है बेस्ट ब्रांच का भी अवार्ड जीत रहे हैं। तो इट्स रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि मैं आज अपने जो मेंबर्स हैं, फैटर्निटी मेंबर्स, उनके साथ में अपनी जो थोड़ी बहुत मेरे को जो एक्सेल की नॉलेज है उसको मैं शेयर करना चाहूंगा। तो रियली इट्स ए ग्रेट ऑनर फॉर मी। और फ्रेंड्स, जैसा भैया आपको बताया कि मैं बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग ए कंपनी सेक्रेटरी, और आज की डेट में मैं सीए सीएस की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मेरी टोटल प्रैक्टिस एरिया जो है वो केवल और केवल एक्सेल है। 100% प्रैक्टिस एरिया एक्सेल। अगर आप किसी को बोलोगे कि अरे एक्सेल के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो मोर देन 20 years आई वर्क विद डिफरेंट लाइक कंपनीज, इंडियन कंपनीज, एमएनसीज। लेकिन एक्सेल जो है स्टार्टिंग से ही आई एम सो पैशनेट, इतना मेरे को अच्छा लगता है जैसे, तो आई ऑलवेज बिलीव थॉट कि यार मेरे को इसी के ऊपर काम करना है, इसी को अपना प्रोफेशन बनाना है। और फिर उसके बाद अभी मैंने 5 साल पहले जॉब छोड़ करके एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन दिस कंपनी चैंप एक्सेल। वी आर हैविंग आवर यूट्यूब चैनल, वी आर हैविंग वेबसाइट। और आज की डेट में जो है केवल और केवल एक्सेल के ऊपर कैसे हम अपनी लाइफ को सिंपल इजी कर सकते हैं, कैसे वर्क लाइफ बैलेंस बना सकते हैं, कैसे हम घंटों का काम मिनट्स में कर सकते हैं, दिनों का काम घंटों में कर सकते हैं। तो वो सब चीजें जो है आज आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो आपकी जो पूरी टीम जो आप लगी हुई है, इतने बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम्स कर रहे हैं। कोविड में जैसे मेरे को पता लगा आप लोगों ने इतनी अच्छी जैसे मेंबर्स के लिए, फैमिलीज के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो रियली इट्स ए सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू जो इसका पार्ट बने हुए हैं। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट, और फिर उसके बाद जो है, और जितना हो सके सेशन को आप इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करना फ्रेंड्स। हमारे पास मॉडरेटर जो है, जो भी जुड़े हुए हैं, कीर्ति जी हैं, भाई रंजन जी हैं, और इसके अलावा जो है रचित जी हैं, जितने भी लोग हैं, तिवारी जी, सब लोग जो है आपकी हेल्प करेंगे। जो भी पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपका डाउट है, टॉपिक के दौरान अगर आपको लगता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो इन बिटवीन आप मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज लास्ट में हम 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट डेफिनेटली वी विल ट्राई टू हैव सम क्वेश्चंस, Q&A आल्सो। राइट सर, कीर्ति जी? चलिए जी, तो मैं चाहूंगा कि कोई ना कोई एक या दो जो मॉडरेटर हमारे जो रहेंगे फुल टाइम, वो अपनी वीडियो भी स्टार्ट करके रखें, अपनी ऑडियो भी स्टार्ट करके रखें, so that like on behalf of all the participants I will be interacting with like you only। तो इन बिटवीन अगर मैं कोई भी क्वेश्चन करता हूं, कोई भी बातचीत करता हूं, तो प्लीज आप लोग मेरे को उसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फ्रेंड्स। तो मेरा जो टॉपिक है एक्चुअली आई वाज कि एक्सेल के ऊपर कैसे हम जो है एक्सेल को इफेक्टिव यूज ऑफ एक्सेल हम कर सकते हैं, और उसके थ्रू अपनी कॉस्ट जो है, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी जो है हम उसको बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, जैसे कैसे इस चीज को हम कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मेरा जो है पूरा टॉपिक रहेगा। एक्सेल एक समुद्र है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक्सेल जो है एक ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन। लेकिन हम इसको जो यूज करते हैं कीर्ति जी, इसको हम जो यूज करते हैं साइकिल की तरह यूज करते हैं। कई लोग इसको बैलगाड़ी की तरह यूज करते हैं, और कुछ लोग तो मेरे को अगर लगता है कि साइकिल की तरह यूज करें, बैलगाड़ी की तरह यूज करें, चलो कुछ तो यूज कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उस साइकिल को भी कंधे पे उठा के चल रहे हैं, मतलब उससे हेल्प लेने की जगह पता लगा जी उससे हमारे को काम जो है उससे और ज्यादा हमारा हैवी हो रहा है, उसके कारण हम जो है कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं। जो टाइम हमारे को बचाना चाहिए, उल्टा टाइम हमारा ज्यादा लग रहा है। तो इस चीज को हमने आज देखना है। मैं ये नहीं कहता कि आज ही आप इसको एरोप्लेन बना लोगे, आज ही आप इसको पायलट बन जाओगे, बट एटलीस्ट आई वुड ट्राई टू शो यू कि यार ये जो चीज जो आपके पास है, जो आपके सिस्टम में है, पिछले 15 साल, 10 साल, 20 साल से जब से आप काम कर रहे हो, एक्सेल हमारा पूरे दिन का अगर हम बात करें अराउंड 50% ऑफ टाइम, अगर एवरेज में हम बात करें एज ए फाइनेंस पर्सन, करीब 50% टाइम डेफिनेटली हमारा एक्सेल के ऊपर बीतता होगा। तो इस जो ये टाइम है, इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा भी अगर हमने कुछ इंप्रूवमेंट कर ली, हमारी वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगी, हमारी जो है एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, हमारे क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे, हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो ये सारे के सारे काम केवल और केवल एक एक्सेल के अंदर थोड़ी सी मास्टरी करने से हमारे पास पॉसिबल है। और वो मास्टरी करने के लिए बिलीव मी, आप लोगों ने जितनी सीए करने की मेहनत की है, सीए आपने रिजल्ट्स जो आपने किया है, सीए की है, उसका अगर आपने 10% मेहनत अगर आपने एक्सेल के ऊपर कर दी,
तो मेरे को, मैं पक्का कह सकता हूं जी, अपने विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितने आपको, देखिए सीए तो है ही है, देखिए उसका सर्टिफिकेट, लेकिन आपकी 10% की एक कोशिश से डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट होगा, एफिशिएंसी होगी, वो डबल हो सकती है। आपकी प्रैक्टिस आपकी डबल हो सकती है, केवल 10% अगर आपने टाइम एक्सेल को अगर अपना स्ट्रोंग कर लिया। तो आज अगर इस 1.5 घंटे के सेशन में, 2 घंटे के सेशन में अगर आपको एक्सेल से प्यार हो जाए, अगर एक्सेल से अगर आपको लगे कि हाँ यार इस पे मेरे को काम करना है, तो आई विल, मेरे को लगेगा कि आज ये जो हमारा सेशन है, जो आज की वेबिनार है, ये सक्सेसफुल है। क्या हमारा एजेंडा रहेगा फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं जो है थोड़ा सा आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, क्योंकि टाइम की कमी है, तो उसके थ्रू एक आपको आइडिया लग जाएगा, एक कहीं ना कहीं आपको एक कसस आपकी पैदा हो जाएगी कि हाँ यार मेरे को एक्सेल के अंदर सीखना है, कुछ ना कुछ करना है, बड़ा करना है। तो कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डेटा को क्लीन कर सकते हैं, क्विक वे में कर सकते हैं, जल्दी से कर सकते हैं। मीन्स जो आप मैनुअली अगर आप काम करोगे, जिसके लिए आप घंटे बिताओगे, मैं उसको कैसे मैं सेकंड्स के अंदर मैं ठीक कर सकता हूं, कैसे मैं उसको डेटा को क्लीन कर सकता हूं। क्योंकि हमारे पास जो डेटा आता है, अलग अलग सोर्सेज से आता है, कहीं से भी आएगा, कहीं पे कई बार ईआरपी से आता है, कई बार इंटरनेट से डेटा आता है, कई बार क्लाइंट से डेटा आता है, और उस डेटा की जो क्वालिटी होती है, दैट क्वालिटी इज नॉट गुड। उस डेटा के ऊपर ना तो हम पिवट लगा सकते, ना उसको फिल्टर कर सकते, ना उसको हम कंसोलिडेट कर सकते, ना उसके ऊपर हम कोई इंफॉर्मेशन कोई निकाल सकते जिसके ऊपर डिसीजन लिया जाए। उसके लिए डेटा को क्लीन होना बड़ा जरूरी है। डेटा को क्लीन अगर हमने जल्दी कर लिया, लेकिन जनरली होता क्या है, हमारा 80% टाइम, 90% टाइम तो डेटा क्लीनिंग में लग जाता है, और जो एनालिसिस की बारी आती है, जो रिपोर्ट की बारी आती है, तब तक हमारा जो है डेडलाइन आ जाती है, हमारे पास टाइम नहीं बचता, और फिर उसकी हम खाना पूर्ति करके और उस रिपोर्ट्स को दे देते हैं, क्लाइंट्स के लिए रिपोर्ट बना दी, फाइनल कर दिया, और बाद में उसके थ्रू हमारे को कोई ना कोई ब्लंडर पता लगते हैं, अरे ये गलती रह गई, अरे वो गलती रह गई। तो जो टाइम हमने 80% डेटा को क्लीन करने में लगाया, उसके ऊपर हमने केवल 5% टाइम लगाना है, 10% टाइम लगाना है। मेन हमारा जो काम है एज ए अकाउंटेंट, एज ए लाइक, अगर हम भाई जॉब कर रहे हो चाहे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हमारा काम है डेटा एनालिसिस का। हमारा काम है कि उसके ऊपर एनालिसिस करके कोई बढ़िया रिपोर्ट देनी है, टाइमली रिपोर्ट देनी है। अगर हमने कोई रिपोर्ट, कोई चीज एनालिसिस वो किया और वो रिपोर्ट 10 दिन बाद दी, तब तक तो बेकार ही हो जाएगा। भाई अगर हम बात करें अभी जैसे कोविड के अंदर, भाई ऑक्सीजन उसको उस टाइम जरूरत है, और आज अगर हम उसको बोले कि अच्छा जी आज ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हमारी, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ ना जी। तो हमारे को टाइमली इंफॉर्मेशन देनी है, सही इंफॉर्मेशन देनी है, उसके थ्रू हम कैसे कर सकते हैं जी। एजिंग एक बहुत बड़ा भाई इशू है, एजिंग बनानी, डेटर्स एजिंग है, क्रेडिटर्स एजिंग है, पता लगा जी स्टॉक की एजिंग है, प्रोडक्ट्स हमारे पास आइटम पड़े हुए हैं उसकी एजिंग है, कैसे हम क्विकली मिनट्स के अंदर, चुटकियों में हम उसकी एजिंग बना सकते हैं। कैसे मेरे पास एक ये भी क्विक वे ऑफ डेटा क्लीनिंग है, उसको कैसे कर सकते हैं। ईआरपी से डेटा डाउनलोड किया, अजीब सा डेटा है मेरे पास, उसको मैंने कैसे डेटा को क्लीन करना है। जैसे इस टाइप का डेटा है, ये देखिए, ये डेटा आपने ईआरपी से लिया, एसएपी से लिया और एक्सेल से लिया। आप देख पा रहे हो कीर्ति जी, इस टाइप का डेटा आपने जो है ना कहीं से लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे आ गया, ये हर एक पेज का डेटा है। अब इसमें देखो ये डेटा आ गया, फिर से इसके हेडर आ गए, फिर इसके अंदर कुछ कॉलम खाली आ गए, कहीं पे हमारे को पता लगा जी डेट का इशू आ गया, ये डेट जो है एक्सेल समझता नहीं है। अब इसके अंदर पता लगा जी सैकड़ों पेज है, अब इसके ऊपर अगर मेरे को पिवट लगानी है, मैं पिवट नहीं लगा सकता। इसके ऊपर अगर मेरे को फिल्टर करना है, मैं फिल्टर नहीं कर सकता। इसके ऊपर अगर मेरे को कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है, रिपोर्टिंग निकालनी है, मैं वो नहीं कर सकता। पता लगा जी इसी को ठीक करने में मेरे घंटों लग जाएंगे, और जब घंटों लगाने के बाद जब मैंने उसके ऊपर रिपोर्ट बनानी शुरू की, इतनी देर में बॉस का फोन आ जाएगा, क्लाइंट का फोन आ जाएगा, अरे सर वो जो फाइल भेजी थी हमने, उसके बाद तो हमारा डेटा चेंज हो गया, उसके अंदर तो नई एंट्री आ गई, उसके अंदर तो काफी चेंज आ गया सर, आपको दूसरी फाइल भेजी है, अब आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अब जो काम आपने किया, जो आप सोच रहे थे कि मेरा 80% काम हो गया, मेरा इतना काम हो गया, इतना टाइम लगा दिया आपने, अब वो सारा काम आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो ये जो काम है आपका, ये कैसे मिनट में हो जाए, कैसे सेकंड में हो जाए, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। गोल सीक, कैसे गोल सीक है, मल्टीपल फाइल्स है उनको मर्ज करना है, कैसे हम कर सकते हैं। फाइनेंशियल ऑटोमेशन फ्रॉम टैली, एक ओवरव्यू मैं देने की कोशिश करूंगा, बट इसके लिए फिर कभी होगा तो बाद में हम करेंगे। वी लुकअप, जो हम सोचते हैं कि वी लुकअप आ जाए तो पता नहीं मेरे को क्या आ जाए। सिनोनियम, एक्सेल का सिनोनियम, कीर्ति जी अगर मैं किसी से बात करता हूं, मैं उसका इंटरव्यू ले रहा हूं एक्सेल के लिए, और मैं पूछता हूं जी हाँ जी एक्सेल को कितना जानते हो एक्सेल, तो वो ये नहीं बताएगा एक्सेल आता है, वो ये बोलेगा सर हाँ हाँ मेरे को एक्सेल बढ़िया से आता है, वी लुकअप भी आता है।
मतलब वी लुकअप आ गया तो लगता है कि हमारे को पता नहीं क्या आ गया, जबकि वी लुकअप जो है मेरे से पूछो तो उसका 1% हिस्सा भी नहीं है, एक्सेल का 1% हिस्सा भी नहीं है वी लुकअप। पता नहीं कितने फॉर्मूलेज हैं, कितनी चीजें एक्सेल के अंदर सीखने के लिए, बट स्टिल वी लुकअप इज ए वेरी गुड फॉर्मूला। तो उस वी लुकअप के बारे में बात करेंगे। वो वी लुकअप भी आज की डेट में जो है वो आउटडेटेड हो गया है। वो वी लुकअप हम जिसको हम सोचते हैं कि वी लुकअप आ जाए, वो तो अब एक्सपायर हो चुका है जी। उसकी जगह तो एक बढ़िया फंक्शन आ गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। सबसे पहले ये फाइल जो है मेरी, ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा बाद में, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, ताकि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर पाए जी। एक जो है ना शॉर्टकट्स का बड़ा महत्व है जी एक्सेल के अंदर। शॉर्टकट किसको बोलते हैं कीर्ति जी? शॉर्टकट। हाँ जी परिधर जी, शॉर्टकट्स आप यूज करते होंगे। शॉर्टकट्स एक्सेल के अंदर क्या होता है शॉर्टकट? कीर्ति जी किसको बोलते हैं? रंजन जी आप में से कोई बताना चाहेगा शॉर्टकट्स, एक्सेल के शॉर्टकट्स? कोई एक आध शॉर्टकट आपको पता है? बहुत सारे हैं सर। अल्टर IR, हम अगर रो इंसर्ट करना होती है, अल्टर EDR हाँ। अगर हमें कुछ रो ऐसी है जो डिलीट करना है, तो ऐसे बहुत सारे हैं जो बेसिकली हम जाते हैं बॉर्डर करना है तो Alt+H+B करके जब हम बॉर्डर लेना होती है तो हम उस तरीके से यूज करते हैं। सो देयर आर मल्टीपल शॉर्ट कीज जो हम यूज करते हैं सर। तो सर ये आपने जो बताई ना 2-3 शॉर्टकट की, आप मैं लिख के देता हूँ, ये तीनों शॉर्टकट की में से आपके जितने भी मेंबर स्टैंड कर रहे हैं ना, इसमें से 5% लोगों को भी वो तीनों शॉर्टकट की नहीं पता। उनको तो शॉर्टकट की जो पता है ना, मैं बताता हूँ, जो हमारे मेंबर्स यूज करते हैं, जो यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, उनको शॉर्टकट है जी Ctrl+S फाइल को सेव करना, Ctrl+P उनको पता है जी, Ctrl+B डाटा को बोल्ड करना है जी, लाइक जो है ना Ctrl+I डाटा को इटैलिक करना है। बस 4-5 चीजें उनको पता है और उनको लगता है बस ये मेरे को शॉर्टकट आता है जी। ये जो शॉर्टकट है ये तो हमारे को बचपन से समझो, मतलब जब से हमने होश संभाला, मतलब एक्सेल पे काम करना शुरू किया, उसी दिन से आने स्टार्ट हो गई। लेकिन एक्सेल में बहुत शॉर्टकट कीज है, काफी शॉर्टकट कीज है। तो उसकी एक शॉर्टकट की 100 कीज, ये जो मैंने यहाँ पे आपको दे रखी है, इसमें से एक की अगर आप डेली यूज करोगे तो आपको देखिए 30 दिन में 30 शॉर्टकट की हो जाएगी। शॉर्टकट की यूज करने से आपका टाइम बचेगा। आपको एक तो माउस को ले जाकर के उस पर क्लिक करना है, एक आप गए फाइल को सेव करना है Ctrl+S दबा दिया, फाइल को प्रिंट करना है Ctrl+P दबा दिया, आप एक इसके अंदर जाकर के ढूंढ रहे हो पेज लेआउट, इसके अंदर जाकर के प्रिंट करना है, उसकी प्रिंट की सेटिंग करनी है, ये करना है, वो सारी चीजें आपकी शॉर्टकट कीज के थ्रू हो सकती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने शॉर्टकट कीज के ऊपर जरूर काम करना है, कोशिश करनी है, अपना टारगेट बनाना है कि यार मेरे को वीक के अंदर 5 नई शॉर्टकट की सीखनी है जी एक्सेल की। इसकी आप प्रिंट आउट लेकर के अपनी टेबल पे रख लो और डेली कोशिश करो कि एक शॉर्टकट की आज मैंने कम से कम 5 बार यूज करनी है, 10 बार यूज करनी है अपने काम के दौरान में, बस हो जाएगा काम जी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डेटा क्लीनिंग की, जो मैं बता रहा हूं कि घंटों का काम कैसे मिनट्स में कर सकते हैं। अच्छा, आप एक इससे पहले बात करते हैं, वर्जन की बात करते हैं। एक्सेल का वर्जन जो है, कीर्ति जी आप कौन सा वर्जन यूज करते हो जी एक्सेल का? और यस जी आप कौन सा वर्जन यूज करते हो एक्सेल का? जो हमारे पैनलिस्ट जिनकी वीडियो ओपन है एटलीस्ट वो तो बताएं, कौन सा एक्सेल का वर्जन यूज कर रहे हो जी आप? सब मेंबर्स डाल रहे हैं, जैसे जगदीश पाटीदार जी कह रहे हैं 2019, चंद्रा सीता 2019, ऑफिस 365 भरत जी, संदीप गुलाटी ईमानदारी से बताना जी, और कौन सा यूज करते हो जी? सीए पल्लवी 365 बोल रही है, ऑफिस 365 संदीप जी। अच्छा जी, और इसके अलावा यश खंडेलवाल 2019, निखिल राम जी ऑफिस 365, ठीक है जी, भूमित जी 2019। ओके, आप कौन सा यूज करते हो कीर्ति जी? आपको पता है अपना वर्जन? सर 2019 ही होगा आई थिंक सो सर, एज सच कभी 2019 होगा। एक सेकंड सर मैं अच्छा, देख लेता हूं ना, एक्सेल ओपन है मेरे यहाँ। और यश जी आप कौन सा यूज करते हो जी? रंजन जी? यश ने 2019 किया है सर। क्या जी? यश का कमेंट आया 2019। अच्छा अच्छा, और परिधर जी हैं अपने साथ, नितिन जी हैं, तो ये लोग जो है आप में से कोई भी मेरे लाइक जो है ना ऐसा मतलब मेरे को मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि एक भी बंदे ने ये नहीं बोला कि हम 2007 यूज करते हैं, 2010 यूज करते हैं, 2013 यूज कर सकते हैं, कर रहे हैं। मतलब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कम से कम आप लोग जितने अटेंड करें 50% लोगों का तो मैं पक्का बोल सकता हूँ कि उनका वर्जन या तो 7 होगा या 10 होगा या 13 होगा। उनके पास ना 16 होगा ना 19 होगा। 2013 कमेंट किया है सर। हाँ जी हाँ जी,
अंकित जैन 2007 सर है सर। 2007 ठीक है नहीं जी, मैंने बोल रहा हूं मतलब, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि भाई कर रहे हैं ठीक है, 2007 भी यूज कर रहे हैं, 2010 भी यूज कर रहे हैं, 2013 भी यूज कर रहे हैं, 2016 भी यूज कर रहे हैं, और 2019 तो आपने बताया, और एक उसके अलावा एक्सेल 365 भी यूज कर रहे हैं। अब आप एक चीज बताओ, ये कीर्ति जी, अब जैसे भाई अंकुर जी ने उन्होंने बताया कि अच्छा जी 2007 यूज कर रहे हैं, कोई 2013 यूज कर रहे हैं, आज हम 2021 के अंदर बैठे हुए हैं, राइट। अगर हम 2007 यूज कर रहे हैं, 14 साल पीछे तो मैं अपने आप हो गया। और अगर मैं जितने भी मेंबर्स हैं, अगर इनकी एवरेज में देखूंगा तो किसी का होगा 10 साल पुराना वर्जन, किसी का होगा भाई 4 साल पुराना वर्जन, किसी का 8 साल पुराना वर्जन। एवरेज एज अगर देखूंगा वर्जन की, कम से कम मेरे को लगता है 7 से 8 साल पुरानी उसकी एज आ जाएगी, 7 to 8 ईयर्स की एज आ जाएगी इसकी, अगर एवरेज एज देखेंगे। और अगर मैं एक दूसरा मैं करूं, ये भाई जो है ना, इसकी जगह अगर मैं आपको ये कहूं कि अच्छा मोबाइल कौन सा यूज करते हो आप, मोबाइल की अगर एज निकालूं, एवरेज एज कितनी आएगी जी? क्या लगता है आपको कितनी एज आएगी? आप ये सर्वे करवा लेना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये जितने लोग यूज कर रहे हैं ना, मोबाइल की जो एज आएगी ना, वो 1 साल से कम होगी। मतलब साल में नहीं आएगी, वो मंथ्स के अंदर आएगी आपकी एज। वो 11 महीने आएगी कि 10 महीने आएगी कि 8 महीने आएगी, बात की बात है, लेकिन 1 साल नहीं आएगी। एवरेज एज की बात कर रहा हूं, एम आई राइट? तो हम मोबाइल के ऊपर देखिए 20,000, 30,000, 50,000 रुपए खर्च करते हैं, और एक्सेल जिसके ऊपर हमारी जो है रोजी रोटी है, जिसके ऊपर हम आधा दिन मतलब आधा टाइम खर्च करते हैं, उसकी जब बात आती है तो हमारे को लगता है 2007, अरे काम तो चल रहा है। अरे सर 2013 यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो काम तो सारा चलता है, काम नहीं रुकता। एक चीज बताओ जी, अगर मेरे को आपको इंदौर से मुंबई जाना हो, तो आप जो है भाई इंदौर से मुंबई फ्लाइट से भी जा सकते हो, आप इंदौर से मुंबई जो है ट्रेन से भी जा सकते हो, आप उससे बाइक से भी जा सकते हो, और आप जा साइकिल से भी जा सकते हो, और कोई कोई ऐसा भी हो सकता है वो पदयात्रा करके भी जा सकता है। पैदल अगर आप जाओगे, क्या आप मुंबई नहीं पहुंचोगे? क्यों जी कीर्ति जी, क्या लगता है आपको? अगर जाओगे तो भाई टाइम की बात छोड़ दो, लेकिन पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे? पहुंचोगे, राइट। टाइम जो लगेगा वो लगेगा। तो यही चीज इसमें है, काम तो सबका चल रहा है, जो 2007 यूज कर रहा है उसका भी चल रहा है, जो 13 यूज कर रहा है उसका भी चल रहा है, जो एक्सेल 365 कर रहा है उसका भी चल रहा है। लेकिन हमने काम चलाना है, या हमने जो है एफिशिएंसी बढ़ानी है, हमने टाइम बचाना है। एज ए प्रोफेशनल अगर हम बात करें तो हमारे लिए तो टाइम की कीमत है। हम जो बिलिंग करते हैं वो टाइम के बेस पे करते हैं, हम जो एम्प्लॉइज को जो सैलरी देते हैं वो टाइम के बेस पे देते हैं। अगर उसी टाइम के अंदर अगर मैं जो काम कर रहा हूं, उस काम को अगर मैं 2 एम्प्लॉय जितना काम अगर 8 घंटे के अंदर अगर मैं कर सकता हूं, तो क्या होगा? मेरी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और ऑटोमेशन करेंगे, अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। क्योंकि गलती जो होती है वो मैनुअल काम करने से होती है गलती। अगर मैनुअल काम करोगे तभी गलती होगी, अगर आप कंप्यूटर से काम करोगे, आप उसके सिस्टम से काम करोगे, तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम रह जाएंगे। तो उसकी बात करते हैं, कैसे मैं जो है अपने सिस्टम के थ्रू मैं अपने डेटा को क्लीन कर सकता हूं, कैसे मैं इस चीज को बढ़िया से मैं बना सकता हूं जी। लेट्स अंडरस्टैंड कैसे ये चलेगा जी इसका। आर्टिफिशियल, अच्छा आज की डेट में आप लोगों ने सुन रखा है नाम आईटी इंडस्ट्री के अंदर, क्या आईटी में क्या सभी कंपनियां बात कर रही हैं? किसकी बात कर रही हैं? हर आदमी जो बात कर रहा है, कंपनी बात कर रही है टेक्नोलॉजी में। कौन सी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं? हर आदमी, हर कंपनी, किसी के भी बात कर लीजिए, उसके किस चीज की बात करते हैं सर? अपने आप को अनम्यूट रखिए सर, 1-2 लोग अगर आप लोग अनम्यूट रखेंगे तो मजा आएगा, मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं सेटिंग में सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो पार्टिसिपेंट्स कैन अनम्यूट देयरसेल्फ। और मेंबर्स ने जवाब दिए सर, अक्षय जैन, निखिल रामनानी जी बोल रहे हैं कि एमएल, चंद्रा सेठिया जी कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, अक्षय जैन जी कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ललित पांडे जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, भूमि हाँ जी, खंडेलवाल जी बिल्कुल एमएल, बिल्कुल। अक्षय जैन ब्लॉकचेन कंसेप्ट। हाँ, तो ये जो ब्लॉकचेन कहो, मशीन लर्निंग कहो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहो, ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आपकी जो ब्रांच के लोग जो है काफी अवेयर है, आप काफी, मेरे को लग रहा है जी काफी आप लोगों ने जो है ना भाई लॉकडाउन में काफी अच्छी अच्छी आपने वेबिनार्स किए हैं, तो आई एम रियली हैप्पी, बहुत बढ़िया जी। तो ये जो इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर किस वर्जन में डाली गई? एक कोई उन्होंने बड़ी अच्छी कमांड दी जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उन्होंने इसका यूज किया है जी। और वो यूज किया, वो कौन से वर्जन में यूज किया? आप में से कोई बता सकता है मेरे को? अगर कोई ठीक बताए तो एक चॉकलेट तो भेज दोगे जी आप उसको, कीर्ति जी ब्रांच की तरफ से, क्या?
चॉकलेट मतलब 20 रुपए की चॉकलेट उसको पेटीएम कर देना, बस 20 रुपए पेटीएम कर देना चॉकलेट के नाम के हाँ ऊपर। सर, हम लोग है ना एक अवार्ड देने वाले, मोस्ट अटेंटिव ऑडियंस अवार्ड, तो अच्छा। वो अभी हम 15 अगस्त पे देंगे सर। जितने सेमिनार्स हुए हैं उसमें जो जो पार्टिसिपेंट्स बहुत अटेंटिव रहे हैं, हम उनके लिए मोस्ट अटेंटिव ऑडियंस अवार्ड जो है सर वो ऐसे ही देने वाले हम। चलिए वो तो सर आप देना, बिल्कुल बढ़िया से देना, लेकिन आज जो है ना, जो अटेंटिव हो, जो अच्छे क्वेश्चन करे, अच्छे आंसर दे, उसको 20-20 रुपए की चॉकलेट पेटीएम के नाम पे सर पेटीएम कर ललित देना। पांडे जी बोल रहे हैं फ्लैश फिल। फ्लैश फिल। अब ये फ्लैश फिल जो है ये कब आया? फ्लैश फिल जो आया ये एक्सेल के किस वर्जन में आया, कौन से वर्जन में आया? ये बिल्कुल ठीक बता रहे हैं जी, फ्लैश फिल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करता है। विच वर्जन, ये कौन से वर्जन में आया? सीए पल्लवी कह रही हैं सर 365, ऑफिस 365 नहीं, ऑफिस 365 में आया। और पल्लवी जी ने कहा ऑफिस 365, बाकी मेंबर क्या बोल रहे हैं जी? वो पल्लवी जी को लाइक बोल रहे हैं कि ठीक बोल रही है, या कुछ और उनका कुछ विचार गलत है, मतलब कुछ अलग है उनका ओपिनियन? सर जगदीश पाटीदार जी कह रहे हैं 2013, अक्षय जैन जी 2016, बीकी साहू 2015, फिर विष्णु जवर जी 2019, कपिल भट्टर साहब। और सर विष्णु जवर जी जो है सर हमारे यहाँ सबसे सीनियर मेंबर हैं सर, काका। मैं काका का स्वागत करता हूँ। सर का कहना है 2019, कपिल भट्टर साहब 2013, चंद्रा सेठिया जी 2013, ललित पांडे जी। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ये कीर्ति जी। तो ये देखिए जो पल्लवी जी ने बताया ऑफिस 365, बाकी ने 2013। अब आप देखिए हमारे यहाँ पे करीब 100 मेंबर अटेंड कर रहे हैं, और उसके अंदर आप देखेंगे तो अलग अलग देखिए कितने सारे हमारे व्यूज हैं, राइट? कितने सारे हमारे को मतलब चीज जो है। अब ये जो चीज आई थी, अगर आप 2019 यूज कर रहे हैं, आप अगर इसको 2016 यूज कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं जी अच्छा जी एक्सेल 365 में है, और एक्सेल 365 आपने आज खरीदा है, लेकिन ये जो चीज थी हमारे पास, ये 2013 से हमारे पास जो है ना ये है जी, 2013 वर्जन में ये आपके पास इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, 2013 के अंदर, राइट जी? 2013 के अंदर ये वाली चीज हमारे पास आ गई थी जी, राइट? तो 8 साल से हमारे पास ये इंटेलिजेंस है, लेकिन हमारे को पता ही नहीं। मतलब मेरे पास कोई, मैंने बताया ना कि हवाई जहाज है, लेकिन हमारे को पता ही नहीं कि अच्छा जी उड़ भी सकता है हमारे पास। अब ये क्या करता है फ्लैश फिल, कैसे काम करता है ये फ्लैश फिल, उसके बारे में एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे आपके पास ये डेटा है जी, कीर्ति जी आपके पास ये डेटा आ गया, जीएसटी नंबर है। अगर आपने इसके अंदर से 10 नंबर अलग करने हो, तो अब आपको इसको लिए डेटा बहुत ज्यादा है आपके पास, पैन नंबर अलग करने हैं जी। क्या करेंगे जी? ना इसके अंदर कोमा है, ना कोई इसके अंदर फुल स्टॉप है, ना कोई इसके अंदर स्पेस है। कैसे करेंगे जिसको? सर फ्लैश फिल के थ्रू मैं पेन नंबर लिखूंगा और अल्टर ई प्रेस करूंगा, तो वो फ्लैश फिल जो है वो उसको ले लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपने सर ये, भाई आपको यूज कर रखा है फ्लैश फिल, तभी तो करोगे ना। अब कोई आदमी सोचता है जी ये तो एक्सेल 365 में है, ये तो है ही नहीं जी, और उसके पास एक्सेल 365 नहीं है, वो यूज कहां से करेगा? और पता लगा जी वो 8 साल से 2013 वर्जन यूज कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं है कि फ्लैश फिल तो मेरे यहाँ पे अवेलेबल है। कहाँ पे अवेलेबल है? डेटा के अंदर जाएंगे, डेटा के अंदर जाकर के यहाँ पे आप देखोगे, ये जहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम है, इसी की बगल में देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है फ्लैश फिल। शॉर्टकट क्या है जी इसका, पता लग रहा है शॉर्टकट? रंजन जी आप देख पा रहे हैं शॉर्टकट? कंट्रोल ई है ना सर, कंट्रोल ई। ये देखिए कंट्रोल ई जो है ये मैजिक की है जी। इस मैजिक की को हमने याद कर लिया जी, कंट्रोल ई को याद कर लिया। अब इस कंट्रोल ई को मैंने क्या किया, जैसे बच्चे को, बच्चा अपने आप देख करके सीख जाता है, ऐसे आप इसको एक्सेल को एक पैटर्न दे दीजिए। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं लगाना। आप सिंपली इसको बोलिए कि भैया इसमें से मेरे को 4283, कहीं पे भी आप इसको बोल दीजिए, एक मेरे को ये दे दिया मैंने, QBVFS 4283P। ये देने के बाद अब जाकर के मैं कहीं पे भी जाऊं, और जाकर के मैंने इस पे कर दिया कंट्रोल ई। जैसे मैंने कंट्रोल ई किया, देखिए जी अब आपके 10 रिकॉर्ड हो, 1000 हो, या 10 लाख रिकॉर्ड हो, कितना टाइम लगेगा भाई कीर्ति जी? कितना टाइम लगेगा? हार्डली सेकंड सर, सेकंड्स लगेगा। तो वॉल्यूम का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन यही काम अगर आपको मैनुअली करना पड़ जाए, तो आप सोचिए कितनी तो गलती हो जाएगी, कितना टाइम लग जाएगा, राइट? और क्लाइंट को अगर हमने फीस बता दी, वो क्लाइंट वैसे भाग जाएगा। तो ये जो चीज है, अच्छा ये तो मैंने बिल्कुल इजी वाला बताया। अब आपके पास 4 कॉलम है,
इन 4 कॉलम को जोड़ करके आपने कोई कोडिंग बनानी है, कोई आपने नरेशन बनानी है, कोई आपने कहीं पे कोई वोचर की एंट्री करनी है, उसके अंदर कोई चीज डालनी है, कुछ भी आपको करना हो सकता है, इसके लिए ये भी चलेगा जी। 4 कॉलम के बेस पे आपने बोल दिया कि हाँ जी मैंने कर दिया वी परचेज 15 लैपटॉप्स इन जैन फ्रॉम विजय, ये मैंने डाल दिया जी। अब इसके बाद मैंने इसको एंटर कर दिया। अब सेम चीज मेरे को यहां पे भी चाहिए, क्या करूं जी? मैजिक की मेरे को पता है, कौन सी मैजिक की लगाई मैंने? कंट्रोल ई सर। कंट्रोल ई। तो ये आपको बोलना है जी, मैं आपको जो ना या तो वीडियो आपको बंद करनी पड़ेगी या फिर अपनी ऑडियो स्टार्ट करनी पड़ेगी, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा जी आपको। लगातार मेरे साथ मेरे को जो ना इंटरेक्टिव आपको बन के रहना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये कंट्रोल ई जो है यहाँ पे आपका ये आ गया जी। तो आपकी देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे केवल 4 रिकॉर्ड दिखा रहा हूं, बट देर मे बी 40,000 रिकॉर्ड्स, देर मे बी 50,000 रिकॉर्ड्स, विद इन सेकेंड आपका ये हो जाएगा। अब आप सोचिए जी, आपके पास ये नाम है जी, अब इसके अंदर आपको ईमेल आईडी बनानी है, इनकी नाम की ईमेल आईडी बनानी है। क्या ईमेल आईडी बनानी है कि आपकी कंपनी के अंदर जो है आपने बोला जी इंदौर मेरी एक जो है ना वेबसाइट का नाम है और indore.com करके इसकी बनानी है, और उसकी ईमेल आईडी में क्या देना है? एस, और मैंने इसके अंदर देना है sbahel@indore.com, ये मैंने आईडी बनानी है जी। अब अगर सपोज करो यही चीज अगर आपको मैनुअली बनानी हो सर, मैनुअली अगर बनानी पड़ जाए आपको, कितना टाइम लग जाएगा सर? लग जाएगा, गलती भी होने के चांसेस होंगे। अब इसके बाद आपने ये दिया और कहीं पे भी गए और जाकर के कंट्रोल ई कर दिया आपने, ये देखिए क्या हो गया जी। यहाँ पे आप जाओगे अपने आप से इसकी जो है ना ये आईडी बन जाएगी जिसकी सोनिया, ये गांधी हो जाएगी, जो भी आप इस अंदर करोगे उसके बेस पे आपकी आईडी बन जाएगी। अगर इसके अंदर देखिए एस ले लिया, ये कंफ्यूज हो गया जैसे, तो इसको आप 2 नाम दे दीजिए कि भाई हमारे को फर्स्ट नेम लेना है, इसके अंदर ए दे दिया आपने, ए गुप्ता ये किया, और जैसे मैंने एंटर किया तो अब की बार इसको समझ में आ गया कि अच्छा जी पहला नाम लेना है और बाद में मेरे को पूरा नाम लेना है, उसके बाद ये पूरा का पूरा इसने ठीक बना दिया, आईडी बना दी। कल को अगर मेरा दूसरा नाम भी हो यहाँ पे कि मेरे जो सिटी का नाम है, जैसे यहाँ पे ये देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, ऐसे नंबर है मेरे पास सर, ऐसे। अब इसके अंदर से मेरे को केवल नंबर को अलग करना है। क्या करेंगे जी? पूछिए अपने हमारे जो पार्टिसिपेंट है, इसमें से केवल मेरे को नंबर को अलग करना है, ओनली नंबर अलग करने हैं। देयर इज नो पैटर्न, कोई पैटर्न भी नहीं है जी यहाँ पे। क्या करेंगे जी इसके लिए? क्या कह रहे हैं जी हमारे मेंबर्स? अगर इसको अलग करना हो, मेरे को नंबर सेलेक्ट करने हैं जी मेरे को इस डेटा में से, क्या करना पड़ेगा? कह रहे हैं कि केवल नंबर अलग लिख के कंट्रोल ई डाल दीजिए, हो जाएगा। वो तो हो गया, लेकिन वो तो अब जैसे आपको कंट्रोल ई का हो गया, अगर आपका वर्जन है, आप ये सोचोगे कि इसको ये करना है तो कैसे करेंगे जी? तब तो आप कोई तरीका है क्या इसको कि हम मैनुअल ही करना पड़ेगा आपको? एम आई राइट? या कोई और भी तरीका हो सकता है? अब ये चीज तो अभी आपको पता लगी ना कि कंट्रोल ई हम यूज कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा बहुत पता है, लेकिन बाकी मेंबर्स को नहीं पता। लेकिन अगर हमारे पास अब जो मेंबर्स है जिनके पास वर्जन 2007 है, वर्जन 2010 है, अब अगर उसके अंदर वो कहें जी अच्छा जी मेरे पास एक आ गया ऐसा डेटा, अब अगर उनको ठीक करना है, कर पाएंगे क्या वो? सर मेंबर्स कह रहे हैं मिड फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। निखिल राम मिड फंक्शन के थ्रू आप बता दो, अगर कोई मेंबर इसको मिड फंक्शन के थ्रू कर दे तो मैं उसको जो ना एक क्या 5 चॉकलेट दे दूंगा। इसके अंदर आप देखिए कि इसके अंदर ये थोड़ी पता है मेरे को कि 5 नंबर है कि 3 है, यहाँ पे 1 है, मेरे डिजिट 6 है या 8 है, ऐसा तो है नहीं ना। मिड का फंक्शन कब करेगा? जब मेरे को एग्जैक्ट, जैसे इसमें से अगर करना हो मेरे को, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ये मिड फंक्शन के थ्रू हो सकता है, मिड के थ्रू हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक पैटर्न है। तीसरे नंबर से पैन नंबर स्टार्ट होता है, 10 कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा पैटर्न नहीं है जी। मिड में मैं क्या क्या नंबर दूंगा बताओ? आप जो कह रहे हैं वो मेरे को बता दें कि इसके अंदर मिड के अंदर मैं क्या चीज दूंगा, मेरे को बता दो जी। इसके अंदर कैसे कर सकते हैं? हो सकता है क्या कीर्ति जी? आप बताओ। नहीं हो पाएगा ना जी इसके अंदर। या तो इसके अंदर स्पेस होता, जैसे इसके अंदर यहाँ पे स्पेस होता, तब तो मैं टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू कर देता कि मेरे को स्पेस के बेस पे मैं अलग कर सकता था, या मेरा डैश होता तो मैं कर सकता था। लेकिन यहाँ पे तो ना स्पेस है ना डैश है। अब यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया से मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलेगी, मेरा जो कंट्रोल ई चलेगा, मेरा मैजिक की चलेगा। लेकिन वो तभी चलेगा जब आपके पास वर्जन 2013 या उसके बाद का वर्जन हो। 2007 फेल है, 2010 फेल है इसके आगे। और जब 2000
2013 में ऐसी चीज आ रखी है, आप सोचिए जो लेटेस्ट वर्जन है एक्सेल 365, उसमें तो क्या क्या चीज आ गई होंगी। एक्सेल 365 तो गजब का मतलब 2007 से 10 में थोड़ा सा चेंज था, 10 से 13 में थोड़ा सा चेंज था, 13 से 16 में थोड़ा सा चेंज था, मतलब मुश्किल से 2% समझो, 5% 3% की उन्होंने और बढ़ा दी। लेकिन जो एक्सेल 365 आया है उसके अंदर तो ये समझो 50 से 100 पे आ गए जी सीधे, मतलब इतना ज्यादा चेंज है, दिन और रात का डिफरेंस हो गया जी उसके अंदर। इसलिए एक्सेल 365 जो है वो सबसे बेस्ट आपका वर्जन है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट 365 भी बोलते हैं, ऑफिस 365 भी बोलते हैं। गजब का उसके अंदर चेंज आ गया है। तो आपको लेटेस्ट वर्जन लेना ही चाहिए आपको, अगर आप चाहते हो कि आपका टाइम बचे, आपकी एक्यूरेसी बढ़े, आपके स्टाफ जो है वो टाइम से घर पे जाएं, तो उसके लिए पूरे आपको कंपनी में एक्सेल 365 लेना चाहिए। तो ये वाला देखिए जी 2013 में, यहाँ पे आपने नंबर डाल दिया जी 12, और इसमें जाकर के कहीं पे भी गए कंट्रोल ई कर दिया, ये देखिए आपका नंबर अलग हो गए। आपको केवल इसमें से हेलो को अलग करना है, साथ में मेरे को बाई भी डालना है, साथ में मेरे को यहाँ पे इंदौर भी डालना है, और साथ में मेरे को नंबर भी डालने हैं। लो जी मैं ऐसे भी डाल सकता हूँ, मैंने एक पैटर्न बना दिया, कोड बना दिया, और यहाँ पे जाके कंट्रोल ई कर दिया, ये देखो जी बन गया जी पैटर्न। कितनी देर लगी इसको, कितने भी मेरे रिकॉर्ड्स होते, टाइम लगता गया जी इसमें। ये फ्लैश फिल है, इसको देखिए मेरे को कई बार होता है कहीं पे कार्ड भेजने हैं, मैं चाहता हूं कि उसका फर्स्ट नेम लिखा जाए V.अग्रवाल, ऐसे में लिखना चाह रहा हूं। अब मैंने जाके कंट्रोल ई कर दिया, ये आ गया जी। कितने मैं एग्जाम्पल दूं आपको, कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल चाहिए, ये देखिए नंबर्स आ रखे मेरे पास, नंबर्स के अंदर मेरे को ऐसा पैटर्न आ जाए। अब आप बताओ जी, भाई रंजन जी के पास कोई क्लाइंट आ जाए, और रंजन जी जो है उसके बाद क्लाइंट वो बोले कि सर कि मेरे पास जो है ना ऐसा डेटा है, इसमें से मेरे को जो है ना ये फालतू की चीजें अलग करनी है जी, केवल मेरे को इसमें नंबर इसमें डालने हैं जी। अब वो रंजन जी कहेंगे अरे कितना डेटा है जी, सर ये करीब 50,000 के करीब रिकॉर्ड्स हैं। 50,000 सर, इसमें तो 2 दिन लगेंगे। अच्छा जी 2 दिन लगेंगे, हमारे को तो जल्दी चाहिए था। और फीस कितनी हो जाएगी? सर इसमें देखो जी लड़के को लगाऊंगा, चेक करेंगे तो कम से कम 10,000 रुपए तो आपके मिनिमम हो जाएंगे जी आपके। अब वो 10,000 रुपए जो है ना आपको बता रहे हैं, आपको काम भी आज चाहिए, अब आप 2 दिन बाद देंगे और 10,000 रुपए लेंगे। अब वो बगल से गुजर रहे थे उनके ऑफिस से, उनके बगल में पता लगा जी यस भाई अपने खंडेलवाल जी ने अपना ऑफिस खोल रखा है, तो उन्होंने सोचा चलो जी यस से भी पूछ लूं मैं। वो यस के पास उन्होंने जाते हुए देख लिया, यस भाई देख लिया था उसने, अरे ये तो जो है ना भाई रंजन जी के ऑफिस से निकल रहे हैं। तो उसने आते ही अरे अरे सर आओ आओ चाय पियो, ये करो और करो, क्या बात थी, क्या करना था? अरे सर हमारे पास ऐसा डेटा है, इसके अंदर से मेरे को नंबर करने थे, बस ये जो डैश ये ब्रैकेट इक्वल टू ये सब अलग करने थे, तो ये कराना था। तो कितने टाइम लगेगा? अरे सर आप चाय पियो ना, आप चिंता मत करो, हो जाएगा काम आपका। अरे सर फिर भी बताओ कब तक चाहिए? मेरे को कल चाहिए। अरे सर कल की छोड़ो, आप चाय पियो, जितनी देर आप चाय पियोगे इतनी देर में कर देंगे। क्या इतनी देर में कर दोगे? और पैसे कितने लगेंगे सर? अरे पैसे वैसे आपसे इस काम के लिए पैसे लेंगे क्या? इसके लिए पैसे वैसे नहीं लेंगे। क्यों? क्लाइंट वो उनके वहां से आया जा, कीर्ति जी के वहां से वो निकलता हुआ आ रहा था, उनको पता है कि यार ये क्लाइंट बड़ा क्लाइंट है। अब वो बताओ जी इन्होंने क्या किया, खंडेलवाल जी ने, कीर्ति जी इन्होंने क्या किया, इसके अंदर गए, इन्होंने मेरा सेशन अटेंड किया हुआ था, इन्होंने जाकर के यहाँ पे डाल दिया 932061 लेटेस्ट वर्जन था इनके पास, और इन्होंने जाकर के इस पे किया, और यस खंडेलवाल जी ने, और यहाँ पे जाके कंट्रोल ई दबा दिया और उनको जाकर के डेटा दे दिया, और उसके बाद पैसे भी नहीं लिए। अब आप बताओ, आपका क्लाइंट वो 20 साल से था, वो क्लाइंट आपका बचेगा, वो 20 मिनट में जो है ना खंडेलवाल जी आपका क्लाइंट जो है ना अपने बना लिया उन्होंने। क्यों बना लिया उन्होंने? क्या क्या था उनके पास? मतलब जो चीज आप 20 साल से उस क्लाइंट को अपने पास रखे हुए थे, उन्होंने 20 मिनट के अंदर उसको दे दिया। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी को यूज किया उन्होंने अपने आप को अपडेट रखा हुआ था, उसके बेस पे उसका काम जो है वो सेकंड्स के अंदर कर दिया वो काम। क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी से हमने अपडेट नहीं थे, हम पुराने ढर्रे पे काम कर रहे थे, आज की डेट में पुराना ढर्रा चल नहीं सकता, इसलिए जो है वो क्लाइंट आपका चला गया। तो हमारे को टेक्नोलॉजी से जुड़ना पड़ेगा जी, हमारे को नई नई चीजें जो आ रही हैं उसके साथ हमारे को हार्डवेयर भी अपडेट करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर भी अपडेट करना पड़ेगा, और नई नई चीजों की हमारे को जानकारी करनी पड़ेगी। वो देखने में आपको लगता है अरे यार 1 घंटा खराब हो जाएगा हमारा, 2 घंटे खराब हो जाएंगे, अरे यार पहले तो बड़ा अच्छा होता था यार, फिजिकल सेमिनार होती थी, समोसे वमोसे खिला देते थे कीर्ति जी, और कुछ जो है ना
मीठा भी हो जाता था, लेकिन आजकल तो यार इसमें मजा नहीं आता। मतलब कई लोग हैं वो तो बस उनको तो अपना भाई पता लगा जी मध्य प्रदेश में रहते हैं, उनको मध्य प्रदेश अपना बड़ा करना है जी। मध्य प्रदेश क्यों? क्योंकि उनको समोसे मिलते थे, उनको बर्गर मिलते थे, तो उससे उनका मध्य प्रदेश बढ़ता था। तो उससे क्या होता था? तो ये चीज हमारे को नहीं करनी चाहिए, हमारे को चीजें सीखनी है। अब इसमें से अल्फा निकालना है, केवल अल्फा अलग करना है, नंबर्स को नहीं करना, केवल अल्फा चाहिए मेरे को। यहाँ पे गए और इसमें जाकर के आपने टाइप कर दिया ANF और KW, बस ये टाइप किया और इसके बाद कंट्रोल ई दबा दिया, हो गया जी। देखिए नंबर में से आपका टेक्स्ट निकल करके आ गया। इसमें आप चेक कीजिए, देखिए कितने इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे 5 भी था, 2 भी था, 5 भी था, वो सब गायब हो गए, केवल और केवल आपका टेक्स्ट बन करके आ गया। देखिए तो ये सारी चीजें जो है आपको डेटा को क्लीन करना है, तो आपको देखिए फ्लैश फिल मैजिक जो है इसको आपने यूज करना है जी। इस मैजिक को यूज करेंगे तो आपको चीज को पता लगेगा जी। राइट जी, चीज समझ में आ रही है जी? कीर्ति जी, खंडेलवाल जी, खुश हो गए खंडेलवाल जी तो, अरे आज तो मैंने कीर्ति जी का क्लाइंट जो है ना वो मेरे पास आ गया। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं एजिंग एनालिसिस। एजिंग वगैरह की जरूरत किस लिए पड़ती है कीर्ति जी? हाँ जी रमेश जी, रमेश मुद्रा जी, एजिंग वगैरह करते हो आप? एजिंग एनालिसिस करते हो सर? एजिंग एनालिसिस की जरूरत किस लिए पड़ती है सर? कंपनी की बैलेंस शीट में पड़ती है, जीएसटी में 180 डेज के लिए पड़ती है, अगर सीएमए डेटा प्रिपेयर करते हैं वहां पड़ती है। देर आर मतलब बहुत सारी जगह सर एजिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये तो आपने बता दी, जो स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है उसकी आपको कह रहे हो कि जरूरत पड़ती है। अगर मैं एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो उसके अंदर एजिंग मेरे को कहां पे जरूरत पड़ती है जी? मैं तो ये आप स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट भूल जाओ, ये आपने बताया बिल्कुल ठीक है, स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट में पड़ती है, बैलेंस शीट में आपने बता दी, जीएसटी की बता दी आपने, ये सब चीज सीएमए में बता दी। लेकिन अगर मैं एज ए बिजनेस में एज ए ओनर में काम कर रहा हूँ, मैं कोई कंपनी रन कर रहा हूँ, मैं कोई फैक्ट्री चला रहा हूँ, कोई मेरा बिजनेस चल रहा है, रमेश नहीं मिला, मेरे नाम पे कोई और ही बोल रहा है। वहां पे मेरी जो है एजिंग एनालिसिस जो है वहां पे कहां पे ये चलेगी जी? क्या उसके अंदर जो है चीज ये काम करेगी जी? बताओ। हेलो सर, एजिंग के लिए मैंने पूछा था सर। हाँ हाँ बताओ जी बताओ। वो क्या है सर, 3 महीने में डेटर्स के फिगर देने पड़ते हैं बैंकों में। ठीक है जी, 3 महीने में देने पड़ते हैं, वो तो आपने बैंक का हो गया। मैं एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था। आप ये बताओ भाई कीर्ति जी, अगर आपने अपना बिजनेस कर रहे हो, आपके डेटर्स हैं, अब आप सुबह सुबह आते हो, अगर आपके सामने ये एक लिस्ट आ जाए कि भैया जी ये कस्टमर है, इस कस्टमर की जो मेरी ये जो है इसकी ड्यू डेट से ये मेरा जो है ना 6 महीने पुराना हो गया जी, इसकी ड्यू डेट अभी आई नहीं है जी, इसकी 3 महीने बाद इसकी मतलब हो गए लेकिन इसने पेमेंट नहीं की जी, तो आप बताओ जी, आप उसको फॉलो अप करोगे? आपके भाई करंट असेट्स आपकी बढ़ेगी, पैसा आएगा, आपका बिजनेस चलेगा, तभी तो आप फोन करोगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि अगर मेरे कौन से ड्यू है, जिसके ड्यू होने के बाद अगर उसको 2 महीने बाद फोन करोगे, वो तो आपको कहेगा अरे यार बड़े मतलब बेवकूफ आदमी है, कैसे बिजनेस चलाते हैं, इनको ये नहीं पता 2 महीने पहले पेमेंट करनी थी, आज ये फोन कर रहे हैं। जब फोन करेंगे तो वो कहेगा हाँ हाँ सर देता हूँ 2 दिन बाद 4 दिन बाद। अब आप उसको बोलोगे कि 2 महीने से ड्यू है, वो ये कहेगा जी आपने बोला तो है नहीं, आज तक फॉलो अप तो किया नहीं है, अब मेरे को 2 दिन तो दोगे, आप 4 दिन तो दोगे। और अगर सपोज करो किसी की ड्यू डेट आने वाली है और उसको 1 दिन पहले आपका रिमाइंडर चला जाए, 2 दिन पहले रिमाइंडर चला जाए कि आपकी जैसे LIC की पॉलिसी आती है, उसका रिमाइंडर आ जाता है कि अच्छा जी आपकी ये पॉलिसी 15 दिन बाद ड्यू है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके लोगों के फोन आने स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी ये ड्यू है, क्या होगा? आप उसको करेंगे। लेकिन अगर हम उसको फॉलोअप ही नहीं करेंगे, हमारे को पता ही नहीं होगा, तो कैसे हम फॉलोअप करेंगे, क्या बिजनेस करेंगे? लेकिन अगर फॉलोअप करना है तो इन्फॉर्मेशन कैसे बने? ये मेरा डेटा तो डेली चेंज हो रहा है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, कल मेरी पेमेंट आ चुकी, अगर पेमेंट आने के बाद अगर मैंने उसको फॉलोअप कर दिया, मैंने पेमेंट को अपडेट नहीं किया, तो भी वो कहेगा अरे सर हमने तो पेमेंट कर दी और आपको पता ही नहीं जी, आपको, वो भी गलत है। मतलब ये है कि मेरा रियल टाइम बेसिस पे मेरे डेटा की एजिंग मिल जाए, मेरे को जिस फॉर्मेट में चाहूं उस फॉर्मेट में मिल जाए, क्या होगा जी? मेरा बिजनेस जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मेरी कॉस्ट जो है वो कम होगी, इंटरेस्ट मेरा जो है इंक्रीज होगा। क्यों जी खंडेलवाल जी, ठीक कह रहा हूं भाई? आप क्यों जी? रमेश जी ठीक बोल रहा हूं जी? जी सर, जी सर। जो मैं कह रहा हूं भाई सेंस बन रही है ना? कोई ऐसा तो नहीं कि मैं बस ऐसे भाई कह रहा हूं, या जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे पूछ लेना जी, कोई ऐसा नहीं हो कि पता लगा जी मैं बोले जा रहा हूं और वो कह रहे हैं जी अरे यार ये ऐसे ही है।
तो ठीक लग रहा हो तो ठीक है, नहीं तो जो आपको लगता होगा कि ये चीज करा दो तो मैं वो करा दूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना, राइट? जी सर। तो ये जो एजिंग एनालिसिस है उसकी बात करते हैं जी, कैसे हमने एजिंग एनालिसिस बनानी है, जल्दी से बनानी है। अब ये देखिए मेरे पास डेटा है, ये मेरे कस्टमर है जी, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स हैं, अग्रवाल स्वीट्स है, अरुण एंड कंपनी है, जीएसटी हब है, कन्हैया स्वीट्स है, मेरे पास डिफरेंट इजी टैक्स एंटरप्राइज है, बिल डेट है मेरे पास, इनवॉइस नंबर है, अमाउंट है, ड्यू डेट भी है मेरी, जो मेरी बात हो रखी थी उसकी ड्यू डेट ये हो रखी थी कि इसको आपने 15 तारीख को हमने की कि 20 तारीख को इसकी पेमेंट ड्यू है जी, लेकिन 30 तारीख को मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूं या आज मैं रिपोर्ट बना रहा हूं, उसके बाद मेरी ये ओवर ड्यू डेज है, कोई 10 दिन पुराना है, कोई 85 दिन पुराना है, कोई 67 डेज है, कोई 1 दिन पुराना है, कोई ड्यू ही नहीं हुआ, इस टाइप की चीज है। अब इसके बेस पे इतनी सारी चीज होगी तो मैं किसके ऊपर मेरे को कोई लिस्ट बनानी है, किसको फॉलोअप करना है, किस पे लीगल एक्शन लेना है, जो चीज हमारे को कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कैसे करनी है जी। अब इसके लिए एक तरीका तो ये है कि मेरे को देखना है जी 1 to 30 डेज कौन से हैं जी, एक मेरे को ये है कि 31 to 60 डेज। फिर इसके लिए मैं क्या है इफ का फॉर्मूला लगाऊं जी, कोई कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला लगाऊं। फिर उसके बाद करने के बाद पता लगा जी इसके अंदर तो मेरे रीजन भी है, यहाँ पे मैंने बोला जी मेरे तो कस्टमर जो है रीजन वाइज है जी, इसमें रीजन है, कौन सा रीजन है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये ऐसे मेरे पास रीजन भी है। अब मेरा जो कोई बंदा है, मेरा जो जीएम है वो मेरा नॉर्थ रीजन का है, तो उसको क्या मतलब है वेस्ट रीजन की, उसको क्या मतलब है साउथ रीजन की। तो इसके लिए आप फ्रेंड्स क्या कर सकते हो, पीवट टेबल के अंदर आप एजिंग बना सकते हो। आप कहोगे पीवट टेबल में एजिंग, ये तो हमने आज तक नहीं सुना, पीवट टेबल से एजिंग बन सकती है, ये तो यार कमाल की चीज है, कैसे बन सकती है। उसके लिए आपको अपने हेडर को, सब में हेडर होने चाहिए, बस ये चीज आपको करनी है। यहाँ पे आपके ओवर ड्यू डेज होने चाहिए, ये तो आपको पता है, प्लस माइनस करके आपके ओवर ड्यू डेज आ जाते हैं। अगर आपको निकालने हैं ओवर ड्यू डेज, कैसे निकालने हैं ये आपको पता है, प्लस माइनस डेट के अंदर भी प्लस माइनस कर सकते हैं जी। कैसे आपको करना है, यहाँ पे आप गए इक्वल टू और इसके अंदर से इसको डॉलर लगाया, माइनस में जाकर के इसको किया तो ये आपके डेज आ गए, कितने दिन से ये ड्यू है, क्योंकि 20 तारीख को ड्यू था, 30 तारीख को रिपोर्ट देख रहे हैं तो ड्यू है, 8 जनवरी को ड्यू था, 30 जून को देख रहे हैं ये मेरे ड्यू है। ये पता लगा जी 29 तारीख को था, एक ही दिन का इसकी ड्यू डेट। अब इसके बाद यहाँ पे कर्सर रखिए, इंसर्ट पे जाइए, पीवट टेबल पे क्लिक कर दीजिए। पहले डेटा को सिलेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कीर्ति जी क्या कहते हो आप, पीवट टेबल बनाने के लिए मेरे को डेटा को सिलेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए पहले? डेटा तो सिलेक्ट होगा ना सर शायद, क्योंकि जहां तक सिलेक्ट करेंगे वहीं तक का तो पिवट में लेता है वो। अब ये देखिए, अब ये जो है ना, आपको क्यों इंदौर का पूरा जो है ना रिंग रोड का चक्कर लगाना है। एक्सेल जो है ना स्मार्ट होता है, अगर आपके डेटा पे हेडर है, आपका डेटा कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी कर्सर रखिए, बस कर्सर रखिए यहाँ पे। बीच में अगर मान लीजिए कोई रो ऐसी है जो ब्लैंक है, देन अगर सर मैं यही तो कह रहा हूं, तो पहले आपको डेटा की जो पीवट टेबल बनाने से पहले अगर आपका डेटा ये ब्लैंक आ गया पूरी की पूरी रो, तो इसका मतलब डेटा की आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है। पहले तो डेटा की क्वालिटी आपने करनी, अगर आपने हेडर ही नहीं है अब आप करोगे इसके अंदर तो दिक्कत का काम है, डेट आपका सही फॉर्मेट में नहीं है। तो पहले मेरे को डेटा क्लीनिंग, तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन तो करनी है। मेरी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, उसके बाद भी हम सिलेक्ट करते हैं, मेरे को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है सर। उसके लिए मेरे को कहीं पे भी कर्सर रखा, मैंने इंसर्ट पे गया, मैंने पीवट टेबल पे क्लिक कर दिया, अपने आप से देखिए इसने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, राइट। करने के बाद इसने सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके बोल दिया आपने, जैसे ही ओके बोला यहाँ पे देखिए पीवट टेबल आ गई, सारे के सारे हेडर यहाँ पे आ गए। अब आप कह रहे हो जी अच्छा यार मेरे को पार्टी वाइज मेरी पहले तो ये देखना है कितनी कितनी चीजें ड्यू हैं, तो आपने कस्टमर को यहाँ पे रखा और आपने जो अमाउंट थी वो यहाँ पे रखी, तो पता लगा जी आपकी ये आ गई जी, ये इतनी पार्टीज की ड्यू है। लेकिन अब इसके अगर आपने फोन कर दिया कि अच्छा जी इजी टैक्स एंटरप्राइज को जी आपका ड्यू ये है, वो कहेगा जी मेरा तो ड्यू ही नहीं है। पहले आपको ये तो देखना है ना जी किसको आपने करना है। तो अब आपको इसकी एजिंग निकालनी है। आपने बोला जी कस्टमर मेरे को नहीं चाहिए जी, मेरे को तो ओवर ड्यू डेज को देखना है जी। आपने यहाँ पे ओवर ड्यू डेज यहाँ पे डाल दिए जी, यहाँ पे डाले तो ये तो एक दिन का ड्यू इतना है, 19 दिन का इतना है, 97 का, इससे कोई सेंस बन रही है? बन रही है सर? नहीं बन रही। अब देखिए मेरे को इसके ऊपर सेंस बनानी है, ऐसे तो मेरी हजारों लाइन आ जाएगी। इसको मेरे को ठीक करने के लिए, बनाने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए जी खंडेलवाल जी, क्या करना चाहिए जी? सर अनम्यूट करो सर अपने आप को, सर 2-4 लोग अनम्यूट कर लो अपने आप को, क्या करें जी इसको?
सर कस्टमर नेम भी उसके अंदर डाल देना चाहिए। क्या जी? कस्टमर नेम भी उसमें सर डाल देंगे? नहीं, कस्टमर नेम तो डाल देंगे, मेरे को इसमें से करना है 1 to 30, 31 to 60, मेरे को 80। तो क्या क्या करना पड़ेगा सर इसके अंदर? कहाँ पे जाऊं मैं, क्या करूं? मेरे को इसके अंदर क्या फंक्शनलिटी पिवट टेबल के अंदर एक है जिसको मैं यूज कर सकता हूं फ्रेंड्स? कौन सी फंक्शनलिटी यूज कर सकता हूं? ग्रुप करना पड़ेगा सर। ये देखिए रमेश जी जो है ना वो कह रहे हैं ग्रुप करना पड़ेगा। तो ग्रुप करने के लिए मैं कहाँ पे जाना पड़ेगा सर? मेरे को क्या मतलब इसके ऊपर मैं कर्सर रखूं, क्या करूं? राइट क्लिक करना पड़ेगा कर्सर रख के। ये राइट क्लिक कर दूं, यहाँ पे राइट क्लिक कर दूं सर? कहाँ पे? इसमें तो है नहीं जी, कहाँ पे करूं? रो लेबल के ऊपर रखिए। रो लेवल पे रखना होगा, मतलब जिसका इलाज करना है उस पेशेंट के ऊपर जाना है ना। हमने अगर इस पेशेंट का इलाज करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ना कि अमाउंट पे राइट क्लिक करना है। तो इसकी चीजें चेंज हो जाएगी। जब आप इसके ऊपर गए और इसको राइट क्लिक किया तो यहाँ पे एक फंक्शन है ग्रुप। जब आपने ग्रुप पे क्लिक किया तो ये पूछ रहा है जी ग्रुपिंग कैसे करनी है जी, कहां से स्टार्ट करनी है? 1 से स्टार्ट करनी है। ये मैक्सिमम 256 से आपको वहां तक जाना है? नहीं जी, मेरे को तो 256 तक नहीं जाना, 180 तक जाना है। अच्छा, कितने कितने दिन की करनी है? 30 डेज की करनी है जी। इसके बाद आपने इसको ओके कर दिया। जैसे ओके किया ये देखो जी आपकी ग्रुपिंग बन गई। कितनी देर लगी? कितना भी बड़ा डेटा है, हो गई जी ग्रुपिंग। अब आप कहो जी नहीं ये मेरे को तो रीजन वाइज चाहिए। अरे रीजन वाइज चाहिए, कोई बात नहीं, रीजन को भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये देखो जी रीजन वाइज बन गई, ईस्ट रीजन की ये बन गई, नॉर्थ की ये बन गई। अरे सर ये तो लंबी रिपोर्ट आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता कंपैक्ट रिपोर्ट आ जाए? आ सकती है जी, रीजन को कॉलम में डाल दो। ये देखिए जी बन गई रिपोर्ट आपकी। 1 to 30 डेज ईस्ट रीजन की ये है, नॉर्थ रीजन की ये है, वेस्ट रीजन की है। अरे सर ये तो ठीक है, मेरे को कस्टमर वाइज आ सकती है क्या ये? और मेरे को रीजन वाइज देखनी है, कस्टमर वाइज देखनी है। अच्छा, तो रीजन को डाल दो फिल्टर पे, राइट, ओवरड्यू को डाल दो कॉलम पे, और मैंने कस्टमर को उठाया और कस्टमर को डाल दिया यहाँ पे। अब देखो जी आपकी रिपोर्ट बन गई, अग्रवाल स्वीट्स, ये जितने भी है 1 to 30। अब आपने क्या किया? अच्छा यार ये तो जो 151 से ऊपर वाले हैं उसके ऊपर एक्शन लेना है जी मेरे को। तो चलो जी इसके अंदर गए और मैंने इसको 151 वाले को सिलेक्ट किया, इसको किया और ये आ गया जी। अब बस अपना फोन लिया, अपने भाई उसको बुलाया, मैनेजर को बुलाया, भैया एक काम करो, ये जो है ना इजी टैक्स एंटरप्राइज वाला ये पेमेंट नहीं दे रहा है, इसके ऊपर है ना एक काम करो, लीगल अपनी टीम को बुलाओ और इसके ऊपर जो है लीगल नोटिस भेजो यार। ऐसे थोड़ी होता है, 181 दिन मतलब 6 महीने हो गए इसमें पेमेंट नहीं दे रहे, वैसे ही कोविड का टाइम चल रहा है और पेमेंट आ नहीं रही, ऐसे नहीं होगा। तो लीगल एक्शन के लिए आपने बोल दिया जी। इसको आपने बोला नहीं यार ये बंदा है, चलो यार अरुण एंड कंपनी, इसको फोन करके पूछते हैं जी क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, फोन कर लिया जी। तो इस टाइप से अगर आपने एक्शन लिया, अगर डेली मॉर्निंग में आप सुबह आओ और कल को अगर आपका डेटा चेंज हो गया, कल को आपकी नई पेमेंट आ गई, इसमें से कोई घट गए कोई कम हो गए, इसके अंदर से पता लगा जी, यहाँ पे गए और आपने जाकर के बोल दिया इसके अंदर से कि चलो जी भाई कीर्ति, और इसके अंदर हमने बोला कीर्ति जोशी एंड कंपनी, कुछ हमने ये डाल दिया जी। इसी तरह से कोई और भी अगर मेरा चेंज हो गया, हो सकता है चेंज, कल को मेरा डेटा चेंज हो गया, किसी की पेमेंट आ गई, किसी का बिल क्लियर हो गया, ऐसे मैंने कुछ कर दिया। अब मैं क्या करूं जी, मेरा डेटा अपने आप से अपडेट हो जाए, क्या करना पड़ेगा कीर्ति भाई, रमेश भाई, क्या करना पड़ेगा? रिफ्रेश, कहीं पे भी जाऊं राइट क्लिक करूं और रिफ्रेश कर दिया जी। जैसे ही रिफ्रेश किया मेरे पास अपडेट आ गया, किसका आ गया? कीर्ति जी का भी आ गया, इसके अंदर ये भी आ गया मेरे पास, इसके अंदर ये भी आ गया। तो मैं जैसे मर्जी चाहूं वैसे करके ये चीज एनालिसिस कर सकता हूं। अब कल को अगर मेरे को ग्राफ बनाना हो तो मैं कल को ग्राफ भी देखिए ऐसे बना सकता हूं जी। देखिए ऐसे आ गया, सारे को लेना है, इसमें मैंने सिलेक्ट ऑल कर दिया, ग्राफ बनाना है, कैसा ग्राफ बनाना है, इस पे जाइए और देखिए जी इस कंपनी की क्या पोजीशन है, कैसा इसके अंदर काम चल रहा है। तो यहाँ पे गए, इस पे पिवट टेबल एनालिसिस, और यहाँ पे आपने बोला जी पिवट चार्ट। अब आपको ये देखिए, एक चीज वैसे देख रहे हो, एक ऐसे दिखा रहे हो किसी को। अब आप इस कंपनी का कोई जो है वैल्यूएशन कर रहे हो, आपको लग रहा है अरे यार इनके तो डेटर्स जो हैं 181 डेज वाले, मतलब बहुत पुराने हैं, हो सकता है फेक डेटर्स हो सकता है यार ये कंपनी की पोजीशन ठीक नहीं है, इसका वैल्यूएशन तो जो है ना इतना ज्यादा नहीं देंगे जी इसका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कीर्ति भाई? चीज समझ में आ रही है आपको? तो ये चीजें जो है इसके अंदर जाकर के आपने ऐड डेटा लेबल्स कर दिया। कल को आपको इस चार्ट को ऐसे नहीं करना, क्लाइंट्स को कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो
किसी को, तो यहाँ पे जाकर के आपने बोला जी डिजाइन में चेंज चार्ट टाइप, और इसमें जाकर के पाई चार्ट बोल दिया, ये पाई चार्ट बन गया जी, ये देखो जी। अब ऐसे करके अगर आप उसके क्लाइंट के लिए चीज बनाओगे, उसको एनालिसिस करोगे, अब वैल्यूएशन टेबल पे अगर आपने उसको क्लाइंट को बोला, अरे भाई तुम्हारे तो यार डेटर्स बहुत ज्यादा है, आप इतने पैसे मांग रहे हो इस कंपनी के, इसका वैल्यूएशन इतना हो ही नहीं सकता, ये पैसे थोड़ी आएंगे, ये डेटर्स हमारे को थोड़ी पेमेंट करेंगे, तो क्या होगा, वो बंदा डाउन हो जाएगा, चलो सर कोई बात नहीं, इसकी प्राइस कम कर लेते हैं। लेकिन जब आपके पास ये रिपोर्ट ही नहीं होगी, ऐसा एनालिसिस ही नहीं होगा, जब आप उसको करोगे ही नहीं, तो कहां से वो आपको जो है अच्छी डील मिलेगी आपको। क्यों जी रमेश जी, मैं जो बता रहा हूँ कुछ सेंस बन रही है, ठीक ठीक कह रहा हूँ सर? यस यस सर, यस सर। और मेरे को एक चीज और पूछनी है सर। हाँ हाँ बताओ ना सर। है ना, ये तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से हो गई, और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिजनेसमैन के लिए। बिल्कुल अब बिल्कुल। जैसे अपन टैली से रिपोर्ट निकालते हैं, मैक्सिमम हाँ। क्लाइंट के पास में टैली होती है, ठीक है। तो उसमें ओपनिंग बैलेंस भी आता है, ड्यूरिंग द ईयर रिसीट भी आती है। हाँ तो हाँ। उस केस में कैसे अपन उसको बेस डाटा को कैसे सही करें उसको? नहीं तो अगर ओपनिंग बैलेंस है तो मेरे को कैसे पता लगेगा, अगर ओपनिंग बैलेंस आ गया, तो ओपनिंग बैलेंस में मेरे को क्या पता है जी, वो ओपनिंग बैलेंस वाला वो 2 साल पुराना है, या आपका 2 दिन पुराना है, या 31 मार्च पिछले साल का है, तो उसके लिए तो मेरे पास कहीं ना कहीं या तो बिल वाइज मेरे पास डिटेल हो, आपकी बिल वाइज अगर आपने जो ना उसका डेटर्स की ना निकाल के उसकी डेटर्स की डे बुक निकाल ली आपने, या बिल वाइज निकाल ली आपने, और उसके आपने कटिंग करके, और आपकी जो आउटस्टैंडिंग है वो अगर आपके पास है, या उसके अंदर भाई एक्सेल के अंदर कोई आपको, भाई कल को आप मेरा यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको फीफो बेसिस पे कैसे मेरे को क्लीनिंग करनी है, उसको क्लियर करना है, तो वो चीज वीडियो मिल जाएगी, मेरी वेबसाइट से मिल जाएगी। जब आपने उसको क्लियर कर दिया, फिर आपको पता लगा जी ये बिल मेरे ड्यू है, ये मेरी ड्यू डेट है, पता होनी चाहिए ना आपको ड्यू डेट कब थी उसकी, और Yes, ये मेरी yes, जो sir. है उसकी मेरी किस डेट को रिपोर्ट बना रहे हो, आज बना रहे हो, 31 मार्च को बना रहे हो, 30 अप्रैल को बना रहे हो, तभी तो मेरे को देखनी है ना रिपोर्ट, तब जाकर के Yes, होगा sir. जी। अब आप खाली ओपनिंग बैलेंस लेकर के और आप बोलो जी अच्छा जी मेरी इसमें एजिंग बन जाए, आप बता दो मेरे को एजिंग में कैसे बना दूंगा, बताओ, कोई ना कोई सेंस तो उसके लिए मेरे को, या तो मैं ये मानूं कि जो मेरे ओपनिंग बैलेंस है वो सारे के सारे 1 तारीख के ओपनिंग बैलेंस है, मतलब 1 तारीख की बिलिंग हो रखी है उसकी, पुरानी कोई बिलिंग नहीं हो रखी है उसकी, तब तो हो सकता है बन सकता है, अदरवाइज कैसे बनेगा सर बताओ। तो ये सब चीजें हमारे को पहले डेटा जो है रिक्वायरमेंट के बेस पे मेरे को डेटा जो है कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद बनना होगा। तो एक बार चीज आपकी बन गई तो ये देखिए आपकी बन गई क्लीनिंग, इसमें जैसे मर्जी इसको एनालिसिस करो। कल को रीजन वाइज देखना है आपके सामने, रीजन वाले को फोन किया कि अच्छा जी साउथ रीजन में क्या पोजीशन है, तो ये देखो जी साउथ रीजन में ग्रेटर देन 181 डेज 1,46,000, अच्छा किस किस की पार्टी के ड्यू है साउथ रीजन में उसको देखना है, इस पे जाकर के डबल क्लिक कर दिया आपने, ये देखिए जी रिपोर्ट बन गई आपकी, किसकी बन गई, साउथ रीजन की, किसकी बन गई, 180 डेज से ऊपर वालों की बन गई। यहाँ पे ये आ गया जी कि अच्छा जी ये साउथ रीजन का है, इसकी ये पेमेंट ड्यू है, इतने दिन से ड्यू है, इतनी अमाउंट ड्यू है, इजी टैक्स। ये देखिए कीर्ति जोशी जी 42,000 रुपए दे ही नहीं रहे, करो जी उनको फोन, क्यों नहीं दे रहे भाई, मतलब यार ऐसे थोड़ी होता है कि आप जो है ना खाली वेबिनार में आप जो है ना ध्यान दे रहे हो, लेकिन पेमेंट जो ड्यू है वो तो आप करनी चाहिए ना जी, टाइम पे आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए जी बताओ। तो जब आप उनको फोन करोगे तब उनको समझ में आएगा, अरे यार आज तो ये गुस्सा हो रहे हैं, यार इसकी पेमेंट तो आज ही करनी पड़ेगी, और उसको पेमेंट ही नहीं करोगे, बस वो तो आपको अरे भाई जी और क्या हालचाल है, ये है उसको वही बता नहीं रहा कि मेरी पेमेंट ड्यू है, बताओ जी। क्यों जी कीर्ति जी, ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ जी? आपको बिना बोले आप बताओ जी कहां से कौन पेमेंट कर देगा जी, उसको जब तक फॉलोअप नहीं करोगे वो क्यों पेमेंट करेगा, बिजनेसमैन तो उसको कहेगा, वो तो चलता हुआ है, जिसकी उसने फॉलोअप कर दिया उसकी वो पेमेंट दे देगा, यही तो चीज होती है। सर अंकित जी और अक्षय जी कह रहे हैं कि पाइवट को एक बार और सर थोड़ा सा आप बता दें वापस सर। पाइवट को दोबारा बता दें सर, पाइवट को देखिए चीज तो मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन अगर हम उसको पाइवट जो ना एक बहुत ही बढ़िया एक टूल है पाइवट टेबल के थ्रू फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, आपके 50-60% काम जिसने एक्सेल आज तक यूज नहीं किया वो आधा 1 घंटा केवल और केवल पिवट टेबल सीख ले, तो मेरे को लगता है कितनी सारी रिपोर्ट्स बिना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले के, बिना कोई उसका काम आराम से हो सकता है पिवट टेबल में, डैशबोर्ड बन सकते हैं पिवट टेबल से। आप ये देखिए मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूं, एक ये दूसरी चीज भी कवर हो जाएगी हमारी और पिवट टेबल भी कवर हो जाएगी, जो अंकित जी पूछ रहे हैं बाकी लोग पूछ रहे हैं। अब ये बताओ कीर्ति भाई,
ये जो चीज आपको नजर आ रही है यहाँ पे, इसको देख करके अगर मैं सपोज करूँ एक्सेल में ना दिखाऊं, अगर ऐसे में कोई चीज दिखा दूं आपको, आपको लगेगा कि एक्सेल का पार्ट है? आपको क्या लगेगा? ये चीज तो यार कोई पता नहीं, कोई ये तो कोई यार दूसरा सॉफ्टवेयर लग रहा है मेरे को। तो लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको कुछ? हाँ जी रमेश भाई, कुछ और अगर हमारे पार्टिसिपेंट अगर इसको देखें, ये यस भाई, तो इसके अंदर आपको क्या लगता है? ये वाली जो चीज है इसको अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये क्या लग रहा है आपको? कुछ एक्सेल लग रहा है या कुछ? लग रहा है सर, क्या जी, क्या लग रहा है? दूसरा सॉफ्टवेयर ही लग रहा है सर। सॉफ्टवेयर ही लग रहा है ना। और मैं अगर ये कहूं आपको, ये सॉफ्टवेयर नहीं है जी, ये आपका एक्सेल है। और एक्सेल के अंदर भी पुराने वर्जन में भी पॉसिबल है। और ये किस चीज की रिपोर्ट है? ये जो रिपोर्ट बना रखी है मैंने, मेरी एक सेल्स ऑर्डर की रिपोर्ट है। ये मेरी एक कोई कंपनी है जहां पे ऑर्डर आते हैं जी। उसमें ऑर्डर कैसे आते हैं? उसने किसी बंदे को बिठा रखा है या कोई सॉफ्टवेयर है, वहां पे ऑटोमेटिकली ऑर्डर आते हैं। जैसे अमेजोन कंपनी है या कहीं पे कोई वहां पे चीज है, कोई फोन आते हैं, तो ये उसने एक ऑर्डर आईडी जनरेट कर रहा है। ऑर्डर आईडी लिख दीजिए उसने, ये ऑर्डर की डेट है। ये कोई कस्टमर है जिसका ऑर्डर आया, ये उस कस्टमर का नाम है जी। ये जो उस बंदे ने ऑर्डर लिया, उस बंदे का नाम है, आपके कंपनी के सेल्स पर्सन का नाम है जी। ये किस रीजन में, ये जो सेल्स पर्सन है वो कौन से रीजन में बैठा हुआ है जी? भाई आपने सैकड़ों अपने सेल्स पर्सन छोड़ रखे हैं, फोन के ऊपर उनके ऑर्डर आ रहे हैं, तो ये उस रीजन का है जी। क्या प्रोडक्ट उसने सेल किया, ऑर्डर क्या, ये प्रोडक्ट का वो है। कौन सी कैटेगरी में ये आता है, ये पता लगा जी। ये मेरा जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे मेरे को देखना है जी बेवरेज, कि मेरे जो बेवरेज के अंदर मेरे कितने आइटम बिकते हैं जी। मेरे को पता लगा जी, बियर बिकती है, चाय बिकती है, कॉफी बिकती है, ग्रीन टी बिकती है, ये चीजें मेरी बिकती है जी। ये डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट हो गई जी। अब उसके बाद ये जो ऑर्डर लिया, उसकी प्राइस क्या है, कितनी क्वांटिटी मेरे को भेजनी है, कितनी मेरे को उससे रेवेन्यू आएगा। सेंस बन रही है जी? कोई बिजनेस सेंस बन रही है भाई कीर्ति भाई? मैं जो बात कर रहा हूं, जो डेटा दिखा रहा हूं, बिजनेस सेंस बन रही है कि नहीं बन रही है? मतलब एज ए अगर फाइनेंस पर्सन, मैं अगर एज ए कंपनी का मैनेजर हूं, कंपनी का सीएफओ हूं, या मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूं, अगर मेरे पास ऐसा डेटा ही तो होगा या नहीं होगा? अब इस डेटा को अगर आपको मिल भी गया, इस डेटा के ऊपर क्या कर लोगे जी? और ये डेटा आपका रियल टाइम पे चेंज हो रहा है, हर 10 मिनट में चेंज हो रहा है, हर 5 मिनट में चेंज हो रहा है ये डेटा, क्योंकि आपका ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है। आपने अमेजोन जैसी कंपनी से आपने जो है वहां पे बिजनेस कर रहे हो, वहां पे आपके ऑर्डर आ रहे हैं, फेसबुक के ऊपर आपके ऑर्डर आ रहे हैं, और ये सारी चीजें रियल टाइम बेसिस पे आपके पास अपडेट हो रही है। और ये जो रिकॉर्ड्स हैं, हजारों रिकॉर्ड्स हैं, हजारों क्या लाखों रिकॉर्ड्स हैं, ये समझो। अब इसके ऊपर आपको एनालिसिस करना है। रमेश भाई बताओ जी, हमारे जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं वो बताएं जी, इसके ऊपर मेरे को एनालिसिस करना है, मेरे को कंपनी के डिसीजन लेने हैं, मेरे को कंपनी की इंक्रीमेंट डिसाइड करनी है, मेरे को किसी की लाइक प्रमोशन देनी है, किसी को कंपनी से बाहर निकालना है, इसके ऊपर करना है जी। क्या करूंगा जी मैं? खाली डेटा को लेकर के क्या मैं इसको डेटा को लेकर के दो क्या? कुछ नहीं होना। लेकिन अगर आपने पिवट टेबल को ढंग से यूज किया, पिवट टेबल बिना कोई फॉर्मूले के, विद इन हाफ एन आवर, विद इन 15 मिनट्स, 20 मिनट्स आपकी ये रिपोर्ट बन जाएगी। अभी बना के दिखाऊंगा जी आपको मैं, अभी की अभी ये रिपोर्ट जो है ना बन जाएगी। अब इसके अंदर गए आपने और आपने देखा जी, अच्छा इस रीजन का क्या हालचाल है, इस पे क्लिक किया, देखो जी इस रीजन की पोजीशन देखते हैं। अच्छा जी, इस रीजन में जून के अंदर सेल बढ़ी हुई थी, क्यों हुई थी सेल? देखते हैं जी कौन है हमारा सेल्समैन। अच्छा जी, वहां पे तो ऋषि काम कर रहा है। अच्छा हेमा है वहां पे, हेमा की पोजीशन देखते हैं जी क्या कर रही है। ये हेमा को क्लिक किया, ये देखिए जी ऐसे उसका सेल्स बाय सेल पर्सन टोटल 41,000 की सेल की है जी उसने रीजन के अंदर। कितने कौन कौन से कस्टमर को की है? इसे कस्टमर है जी। कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है जी वहां पे? ये प्रोडक्ट मेरे ज्यादा बिक रहे हैं जी। आप इसके ऊपर अगर ये चीज आ गई, आपको डिसीजन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो जी? क्यों जी रमेश भाई, क्या कहते हो? अगर मेरे को ये ऐसे आ गया, अब आपने बोला जी किसी को ये कर रहे हो, अच्छा जी भाई देखते हैं कि शाहरुख की पोजीशन क्या है, ये देखते हैं जी। अब शाहरुख ने, ये देखो जी फेब महीने में बड़ी डिप हो गई सेल। यार ये तो 1,000 रुपए की सेल हो रही है बस खाली फेब महीने में, या जीरो हो गई फेब महीने में सेल। ऐसा कैसे हो गया? पूछो उससे फेब में क्या था। अरे पता लगा जी वो तो शादी बनाने गया हुआ था। अरे इसका मतलब शादी बनाने गया तो कोई ना कोई बंदा तो होना चाहिए ना। क्या करने गया भाई? हमारी सेल इतनी डिप हो गई, क्या रीजन है इसका? उसके ऊपर एक्शन लो, उसको फैब का इंसेंटिव मत दो, उसकी फैब की सैलरी को भाई कट कर दो। यही तो चीज डिसीजन लेने हमारे को। और भाई कंपनी का जो सीएफओ का काम है, सीईओ का काम है, क्या काम है?
ऐसे ही तो डिसीजन लेने हैं उसके। अच्छा यार टॉप 5 कस्टमर में, अच्छा ये कंपनी 1 हमारी जो है ना ये बड़ा अच्छा कर रही है वेस्ट रीजन में, अरे यार एक काम करो इसको गिफ्ट भिजवा दो कोई, यार इसको एक 5% का इंसेंटिव भिजवा दो, यार इतना काम कर रहा है थोड़ा उसको जो है ना भाई अच्छा लगेगा। तो क्या होगा, वो कंपनी का जो उसको कस्टमर को फोन कर लिया, अगर मालिक ने कस्टमर को फोन कर लिया और उसको कितना अच्छा लगेगा, अरे कस्टमर उसका मालिक का फोन आया है, अरे तो वो अगली बार और सेल लेगा करेगा। और जिसकी सेल पता लगा जी कोई कस्टमर की सेल नहीं हो रही, वो कस्टमर कम कर रहा है, तो आप उसको फोन करके पूछ सकते हो, यार ये तो मेरा रिलेटिव है, ये तो मेरा दोस्त है और ये ले नहीं रहा, पता लगा जी उसने बताया कि आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम तो तब पता लगेगी ना जब आप उसको करोगे, एनालिसिस करोगे, तभी तो पता लगेगी। अदरवाइज तो खाली डेटा है, आप खुश हो रहे हो इसको देख करके, अरे इतने ऑर्डर आ गए मेरे पास तो, अरे इतनी सेल हो गई मेरे पास तो टोटल, बस इसी में खुश हो रखे हो, बिजनेस कहां से बढ़ जाएगा आपका? बताओ जी। बिजनेस बढ़ाने के लिए तो आपको ऐसी रिपोर्ट्स बनानी होगी, ये रिपोर्ट्स बनानी होगी, तो ये देखिए कैसे बनेगी, पिवट टेबल बनानी है, जिसके लिए कुछ नहीं करना आपने। इस डेटा को मैंने उठाया, कंट्रोल सी किया और मैंने जाकर के एक नई जगह पे एक नई फाइल में ले गया, मैं आपको सिखाने के लिए लेके गया हूं जी, ऐसा नहीं है कि मैं तो बना ही रखा है। सेम चीज मैं आपको बना के दिखाता हूं कैसे ये चीज आपकी बन जाएगी। अब इसके अंदर कॉलम कल को दूसरे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही कॉलम है। कल को मेरा यहाँ पे जो सेल्स पर्सन है, जरूरी थोड़ी हमने अमिताभ को ही रखना है, हमने यहाँ पे कीर्ति को अपॉइंट कर दिया, यहाँ पे हमने यश को अपॉइंट कर दिया, यहाँ पे हमने जो है पल्लवी को अपॉइंट कर दिया, यहाँ पे हमने रमेश जी को अपॉइंट कर दिया, किसी को भी कर सकते हैं जी हम अपॉइंट, ये तो हमारे ऊपर है ना जी, जिस मर्जी को हमने यहाँ पे अंकुर को अपॉइंट कर दिया जी, ऐसे करके हमने यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जी यहाँ पे। और इसके बाद मैंने इसको पकड़ा और पकड़ करके चेंज कर दिया। अब हमारे को रिपोर्ट बनानी है जी इसकी, ऐसी रिपोर्ट बनानी है कि मेरे को सबका एनालिसिस करना है जी। क्या करना है मेरे को, क्या करना चाहिए यस भाई, कीर्ति भाई क्या करना चाहिए इसके लिए? यहाँ पे अगर मेरे को ये डाटा है, ये डाटा मेरा क्लीन डाटा है, सबके ऊपर हेडर है, क्या करना चाहिए मेरे को? सबसे पहले प्राइवेट बना सकते हैं सर। तो सबसे पहले यस भाई इस डाटा को मेरे को क्या करना चाहिए, डाटा को यस भाई क्या करना चाहिए डाटा को? सर प्राइवेट बना सकते हो या चेक कर सकते हो कि डेटा में कुछ डिस्टर्बेंस नहीं मैं पिवट बना रहा हूं, लेकिन पिवट बनाने के लिए सबसे पहले यस भाई डाटा को क्या करना चाहिए मेरे को? डाटा को क्लीन करना सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं ना सर। सेलेक्ट करना चाहिए सर जरूरत नहीं ना, अभी तो आपने बोला डायरेक्ट कहीं भी लिखूंगा तो बन जाएगी प्राइवेट। अरे वेरी गुड, मैं यही देखना चाह रहा था कि बस आप मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हो या ये कर रहे हो। तो एक आध चॉकलेट भिजवा देना कीर्ति जी, आपके जो ना इतने बढ़िया देखिए यश जी जो है ना, ऐसा नहीं कि हाँ में हाँ मिला रहे हैं, यश के लिए सर कलकत्ता से आती है चॉकलेट, यश के लिए कलकत्ता से आती है चॉकलेट, इंदौर की चॉकलेट नहीं खाता है यश। फिर तो मैं जो है ना इंदौर आ रहा हूँ 2 दिन के बाद, फिर तो आप मेरे को चॉकलेट भिजवा देना, एयरपोर्ट पे दे देना, बस मैं इंदौर में बस खाली एयरपोर्ट पे 1 घंटे के लिए रुकूंगा बस केवल। मंडे को मैं इंदौर में होऊंगा जी। चलिए ये वाली जो चीज है, जैसे आप यहाँ पे आ गए तो इस पे इंसर्ट पे क्लिक किया और इंसर्ट पे करके पिवट टेबल पे क्लिक कर दिया, अपने आप से इसने डाटा को सिलेक्ट कर लिया। बशर्ते आपका डाटा क्लीन है, आपके डाटा पे हेडर है, आपकी अमाउंट कॉलम में अमाउंट पड़ी हुई है, डेट कॉलम में डेट पड़ी हुई है, तभी आप ये करोगे तो ही फायदा है इसका। ये करने के बाद आपने इसको ओके कर दिया। सर डेटा को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कुछ रहता है क्या कि हम डेटा चेक कर सके ताकि डेटा सही है कि नहीं है किसी नहीं मतलब, तो वो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मेरे डाटा में किस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो कर सकते हो क्रॉस वेरीफाई कि इस डाटा को आपने जैसे सिलेक्ट किया जैसे, या इस डाटा को पूरे के अंदर। सर यश ये कहना चाह रहा है, करेक्ट मी यश इफ आई एम रॉन्ग, कि कहीं कोई गैप है, कोई लाइन ऐसी है जो मतलब वहां पर कोई डाटा नहीं है, तो वो डेटा हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाइन जो है वो मतलब फिल की हुई नहीं है? तो मेरे ख्याल से फिल्टर फॉर्मूला से ही हो सकता है। नहीं देखिए बहुत बढ़िया इनका जो है ना क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे तो मेरे को मजा आता है बड़ा कि यार वाकई जो है ना आप लोग जो है भाई पूरी तरह से एकदम अच्छे से ध्यान से सुन रहे हो। अब ये देखिए इनका मतलब ये है कि ये डाटा मेरे पास कोई ऐसा डाटा पड़ा हुआ है जी, राइट, उस डाटा के अंदर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। पता लगा जी मेरे डाटा के अंदर कहीं पे एरर पड़ी हुई है, एरर पड़ी हुई होगी तो मैं पिवट टेबल लगाऊंगा, मेरा सम कैसे हो जाएगा जी, राइट। अगर मेरा पता लगा जी इस डेटा में जहां पे वैल्यू पड़ी हुई है वहां पे बी पड़ा हुआ है, टेक्स्ट पड़ा हुआ है जी। अच्छा एक चीज बताओ रमेश भाई, थोड़ा ध्यान देना, अगर आपके पास 2 मिनट हो तो भाई देखना, इधर देखना सर मैं तो 2 घंटे आपके लिए बैठा हूँ सर। अरे सर चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये देखिए सम लगाया मैंने
और सम करके मैंने ये दोनों चीजों को सम कर दिया, इतना तो टोटल आता होगा मेरे को, और मैंने इसको सम लगा करके मैंने कर दिया। क्या क्या आंसर आएगा जी यहाँ पे रमेश भाई? 1121। 1121। ये देखिए मैंने एंटर कर दिया, आपने बोला 1121, यहाँ पे क्या आ गया? 414 आ गया। ऐसा कैसे हो गया? एक्सेल मतलब गलत काम कर रहा है, मतलब टोटल भी नहीं दे रहा। 707 है सर। ओ भाई, ये तो आपको अब पता लगा जब गलती हो गई। अब ऐसी गलती अगर आप कैसे ढूंढ लोगे भाई? ये 707 है कि 707 है? पता लगा जी, जिसका डेटा है वो जो कंपनी वाला है उसने इंटेंशनली कर रखा है या गलती से कर रखा है। ऐसे एक जगह प्रॉब्लम है या 100 जगह प्रॉब्लम है, कैसे पता कर लोगे सर आप? ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपने एक्सेल के थ्रू, यही तो डेटा क्लीनिंग है, यही तो चीजें सीखनी है आपको कि कहीं पे मेरी एरर पड़ी हुई है। अब उस एरर को भाई अपने कीर्ति भाई है, उनको तो पता है यार एरर है, तो उनको और तो कुछ पता नहीं, चल यार इस एरर को जाकर के और तरीका नहीं, इसमें गए 0, फिर इसके बाद मैनुअली इस पे गए एरर एरर एरर, यहाँ पे गए फिर 0, फिर तीसरे पे गए, ऐसे किया। वो करते करते बेचारे 2 घंटे 3 घंटे लगा करके वो एरर को 0 करेंगे, एक आध फिर भी छूट जाएंगी, बॉस के पास लेके जाएंगे, बॉस को वही एरर नजर आएगी जो छूट गई, तो कहेंगे यार तुम यार इतने इंटेलिजेंट, मैंने तो पॉइंट किया तुम्हारे को, इतनी हम यार सैलरी देते हैं यार, तुम इतना छोटा सा काम जो है ठीक से नहीं कर पा रहे यार इसको तो मैं किसी 12th वाले को बंदे को देता, वो भी कर देता, क्या रह जाएगा जी? यही होता है जी कॉर्पोरेट्स के अंदर। मैंने तो 20 साल जॉब की है, वो एमएनसी में आपने 10 काम अच्छे कर दिए, रात को कर दिया लगा के 11 बजे जा रहे हो ऑफिस में, सैटरडे को जा रहे हो, संडे को ऑफिस में जा रहे हो, अपनी फैमिली लाइफ को आपने जो है ना भाई आगे पीछे कर दिया, 2 गलती कर दी, 1 गलती कर दी 1 मिनट में, अरे यार नहीं मजा नहीं आता यार, आप तो बस ऐसे काम कर रहे हो यार। सर कॉर्पोरेट और सीए फर्म में भी यही हालत है सर, यही हालत है ना जी। फैमिली लाइफ रुइन नहीं हो रही सर। हाँ तो वो चीज तो देखो जी, आप जो है ना सेमिनार मेरी कराते नहीं हो, अगर आप ये सेमिनार अपने 5 साल पहले करा लेते रमेश जी, तो मैं कम से कम 2-4 चीजें 5 साल पहले बता देता तो कुछ तो फर्क पड़ता। तो जिस दिन भी क्या करेगी सुबह मैसेज कर देगी आप देखिए ये लोग जो है ना अपने यहाँ पे अनम्यूट करके भूल जाते हैं जी, अब आवाज आती रहती है तो क्या करें सर। अब ये देखिए, अब इस डेटा को अगर क्लीन करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप गए और आपने दबाया, इसके अंदर देखिए होम बटन पे गए, होम के अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रखा है फाइंड एंड सेलेक्ट। जब आप फाइंड एंड सेलेक्ट पे आए तो यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है फाइंड भी है, रिप्लेस भी है, गो टू है, गो टू स्पेशल पे चले गए। अब की बार आपने बोला जी मेरे को तो एरर सेलेक्ट करनी है, इसमें से केवल एरर, तो जितनी भी एरर होंगी, चाहे मेरा रिकॉर्ड्स 10 लाख रो हो, चाहे मेरी 50 कॉलम हो, मैंने पूरे डेटा में से एरर को सिलेक्ट करना है। एरर्स को सिलेक्ट किया, इसको ओके बोल दिया, इसने क्या किया सारी एरर्स को सिलेक्ट कर लिया जी। अब इस एरर्स को 0 करना है मेरे को। अभी तक तो कीर्ति भाई क्या कर रहे थे, एक एक चीज पे जाके कर रहे थे, आप सोचो कितने टाइम लग जाएगा, कितनी गलती। अब ये जब सिलेक्ट हो गई, मैंने यहाँ पे 0 दबाया और 0 के बाद एक शॉर्टकट की है कंट्रोल एंटर, कंट्रोल प्रेस करके एंटर दबा दिया। जैसे मैंने कंट्रोल एंटर किया सब जगह पे 0 हो गई, हो गया जी, एरर जितनी भी थी वो मेरी सारी क्लीन हो गई। अब मेरे को यहाँ पे देखना है जी कौन कौन सा ऐसा डेटा है जो नंबर नहीं है, इस पे मैंने सिलेक्ट किया, फिर से वहीं पे चला गया, मैंने इस पे जाकर के मैंने बोल दिया कि अच्छा भाई होम पे फाइंड एंड सेलेक्ट गो टू स्पेशल। इस गो टू स्पेशल की भी शॉर्टकट की है, किसी को पता है गो टू स्पेशल की शॉर्टकट की पता है? तो वो Alt+H+F के आगे कुछ होगा सर? Alt+H+F, इतनी बड़ी F5 है सर, F5। ये देखो रमेश जी को चॉकलेट भेजना भाई, ये देखिए F5, यहाँ पे F5 करते ही गो टू आया, स्पेशल में यहाँ पे पहुंच गए। ये देखिए यहाँ पे आने के बाद अब आपने बोला जी मेरे को तो टेक्स्ट ढूंढने हैं, इसमें से केवल टेक्स्ट, नंबर नहीं ढूंढने, टेक्स्ट ढूंढने हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसको ओके कर दिया। अब की बार ये सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, इसके अंदर 707 भी पकड़ में आ गया। अब यहाँ पे पूछ सकते हो क्लाइंट को कि भैया यहाँ पे ये क्या प्रॉब्लम है, ये तो अरे 146 समझ रहा था मैं, तो यहाँ पे ये तो I46 है, अरे ये तो 11 समझ रहा था मैं, ये तो ये चीज है। ये देखो जी, पता लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है चीजों को। अब इसको जाकर के आपने जो एक्शन लेना है, इसको डिलीट करना है, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, इसको कुछ और करना है, वो आप काम कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस टाइप से चीजों को आप क्लीन कर सकते हो, डेटा को क्लीन। ब्लैंक पड़े हुए हैं,
अब ब्लैंक की जगह आपको जीरो डालनी है या ब्लैंक की जगह कुछ नंबर डालना है, क्या करोगे? इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाकर के F5 कीजिए। F5 भी इसकी शॉर्टकट की आपने बताया अभी रमेश जी ने, स्पेशल पे ब्लैंक्स को सिलेक्ट कर लो। ओके किया, सारे ब्लैंक्स आपके सिलेक्ट हो गए। अब इस ब्लैंक्स के ऊपर आपने क्या एक्शन लेना है, क्या करना चाहते हो ब्लैंक्स पे? जो भी नंबर डालना है, जीरो डालनी है, जीरो डाल दी। अब इसके बाद क्या की दबाऊंगा, शॉर्टकट की क्या दबाऊंगा, बोलो? कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर। तो ये जब तक हाथ से नहीं करोगे 2-4 बार, तब तक ये चीज नहीं आएगी। जब ये चीज कर दी आपने, तो आपका डेटा देखिए क्लीन हो गया। कितनी जल्दी हो गया क्लीन आपका। ये क्लीन होने के बाद अब इस टाइप की अगर कोई डेटा आ गया, ऐसा डेटा आपने देखा है रमेश जी? ऐसी कोई रिपोर्ट आ गई आपकी, सपोज करो ईस्ट भी है, बैटमैन भी है, एप्पल भी है। कुशाग्र जी जुड़ गए हमारे साथ। अब ये देखिए बड़े कुशाग्र जवाब देंगे जी हमारे को पूरे। हाँ जी कुशाग्र जी, आप बताइए सर कि इसके अंदर ये जो है, ये ब्लैंक का मतलब क्या हुआ? कुशाग्र जी तो हमारे से नाराज हो गए, चले गए हमारे। हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक का मतलब क्या हुआ जी? सेम डाटा है। सेम डेटा मतलब जो ईस्ट है, ये सारे जो ब्लैंक है वो सारे ईस्ट रीजन के हैं। हाँ, अब इसको सर अगर इसके ऊपर, अगर आप इसके ऊपर नॉर्मल पे फिल्टर लगाओगे या पीवट लगाओगे, काम करेगी क्या आपकी फिल्टर या नहीं pivot? करेगी सर। नहीं करेगी। अब इसको अगर करना हो, ऐसा कितनी बार रिपोर्ट आती है हमारी क्लाइंट की, अपनी रिपोर्ट, कितना टाइम हमने वेस्ट किया है, कितने सालों से हम वेस्ट कर रहे हैं। क्या करना चाहिए इसको अगर ठीक करने के लिए, क्या करना चाहिए बताओ? F5 सेलेक्ट करके F5 सिलेक्ट करके। अब आपको पता लग गया। नहीं तो लोग क्या करते हैं, कीर्ति जी को तो मैंने देखा है जब मैं इनसे मिला था पीछे, ये तो बेचारे ऐसे करते हैं इनको तो, और ये है नहीं, इसको पकड़ के ऐसे करते हैं, इसको गोदरेज को पकड़ के ऐसे करते हैं। और कई बार तो क्या करते हैं, करते करते इतनी देर में वाइफ का फोन आ गया। तो वो वाइफ का फोन आ गया तो भाई मानसिक संतुलन तो आपको पता ही है, बड़ों बड़ों का चेंज हो जाता है, राइट? अब उसके बाद पता लगा जी गोदरेज की जगह आदि एडिडास को भी इन्होंने गोदरेज कर दिया। हो गई गलती। कितना बड़ा ब्लंडर हो गया। हो जाएगा ना ब्लंडर? गलती भी हो रही है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसकी जगह अगर आपने जो है ना, ये तो मैनुअल कर रहे हो, टाइम लगा रहे हो, गलती कर रहे हो, उसकी जगह आपने इसको सिलेक्ट किया, जितना मर्जी डाटा हो, आपने इसके अंदर F5 दबाया, F5 दबा के स्पेशल पे गए, क्या की दबाऊं जी, क्या ब्लैंक करूं रमेश जी? ब्लैंक। आपने ब्लैंक्स को सिलेक्ट कर लिया। अब ये सिलेक्ट तो हो गए ब्लैंक्स, लेकिन ब्लैंक्स के अंदर क्या चाहिए मेरे को, कैसे लेके आऊं? सब में लेके आऊं क्या, कैसे लेके आऊं? फॉर्मूला लगा दो सर, इक्वल टू इक्वल ऊपर वाला एप्पल पे क्लिक करो। भट्टर जी लिख रहे हैं सर कि हाँ। आपको लगाना है F5 के बाद ब्लैंक, ब्लैंक के बाद अबो सेल रेफरेंस कंट्रोल प्लस इंटर। हाँ, तो ये C2 मैंने लगाया है इसके अंदर, मतलब इसके अबव वाला लगा दिया C2, और इसके बाद मैंने कंट्रोल एंटर, जो मैंने शॉर्टकट की। अब ये किया कर दिया। अब आप बताओ, जिस काम को कीर्ति जी 1 घंटे में कर रहे हैं, और वही काम रमेश जी अगर 1 मिनट में कर देंगे, तो बताओ जी इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, क्लाइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप बताओ। कीर्ति जी तो शाम को जो है ना बर्गर खा के जा रहे हैं, अपने मध्य प्रदेश को बढ़ा के जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, और अपने रमेश जी जो है ना टाइम से जाकर के और घर पे बीवी के हाथ की चाय पी रहे हैं। बताओ जी क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सेल को ढंग से यूज कर रहे हैं, स्मार्ट ढंग से यूज कर रहे हैं। कीर्ति जी अपने जो है ना सेमिनार में लगे हुए हैं। कोई बात नहीं भाई। अपने यश भाई खंडेलवाल जी, अरे समोसे मिलेंगे वहां पे तो यार बस मेरे को समोसे यार बड़े अच्छे लगते हैं। अरे लेट जाएंगे ना यार, काम जल्दी थोड़ी करेंगे। शाम को तो हम बर्गर का ऑर्डर कर सकते हैं 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद ही तो करेंगे ना बर्गर का ऑर्डर। तो आराम से अपने काम पे कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं बस। फिर बाद में अरे यार गैस बनती है मेरे को तो यार बहुत ज्यादा यार, पता नहीं यार, अब तो शादी नहीं हो रही यार, कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा, क्या करूं? बताओ जी। तो ये चीज आपको करनी है। एक्सेल को अगर ढंग से यूज करोगे तो काम हो जाएगा। तो डेटा क्लीनिंग पता लग गई जी। अब ये डेटा क्लीनिंग सपोज करो आपकी हो चुकी है। ये जो हम जो बात कर रहे थे, मेरा जो डेटा जिसको मैं दिखा रहा था आपको, ये वाली डेटा क्लीनिंग होकर के आ चुकी है। अब इसके ऊपर मेरे को डैशबोर्ड बनाना है। कैसा डैशबोर्ड बनाना है? ये जो चीज मैंने आपको बताई ना, यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसा डैशबोर्ड बनाना है। ये वाला डैशबोर्ड बनाना है। इसके लिए मैं गया यहाँ पे और इंसर्ट पे जाकर के मैंने पिवट टेबल इसके अंदर क्रिएट कर दी। अब पिवट टेबल क्रिएट करने के बाद देखते हैं जी मेरे को क्या बनाना है जी। सब एक बनाना है मेरे को, सेल्स बाय सेल्स पर्सन बनानी है। कोई बात नहीं, तो सेल्स पर्सन को उठाया, यहाँ पे डाल दिया। अब की बार पता लगा जी मेरे को अमाउंट भी डालनी है, रेवेन्यू भी डाल दिया।
तो ये देखिए मेरी सेल्स पर्सन वाइज रिपोर्ट आ गई, अंकुर, कीर्ति, पल्लवी, सबकी रिपोर्ट आ गई। अब इसको मैंने क्या किया, ग्राफ बनाना है इसका। कैसा ग्राफ बनाना है, बार चार्ट बनाना है जी। तो मैं यहाँ पे गया, तो चलो जी बार चार्ट बना देते हैं इसको, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जाके पीवट चार्ट एनालिसिस पे पीवट चार्ट को सिलेक्ट किया और मैंने बोल दिया बार चार्ट, और इस बार चार्ट को सिलेक्ट करके इसको ओके कर दिया। ये देखिए जी एक चार्ट बन गया मेरा। इसका नाम मैंने दे दिया सेल्स बाय सेल्स पर्सन। यहां पे जाऊंगा, सेल्स बाय सेल्स पर्सन, ऐसे करके मेरा एक चार्ट बन गया। इसमें कुछ चीजें फालतू है, इसमें ये चीज एक्स्ट्रा आ रखी है, इसको मैं हटा सकता हूं जी, ये फालतू की चीजें। यहाँ पे मेरे को अमाउंट इसके अंदर आनी है, राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको ये डाल सकता हूं कि यहाँ पे अपने आप से ये सबके अंदर ही आ जाए। राइट क्लिक किया, ऐड डाटा लेबल्स, ये देखिए आ गई अमाउंट। यहाँ पे अब नीचे वाली अमाउंट को भी मेरे को हटाना है, थोड़ी जगह अच्छी बन जाएगी। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकता हूँ। ये सारी की सारी चीजें मैं कर सकता हूँ जी, इस टाइप से करके, और मेरा एक चार्ट बन गया जी। राइट, अब इसके बाद मेरे को दूसरा चार्ट बनाना है। तो दूसरा चार्ट बनाने के लिए क्या करना है जी, मेरे को इसी पिवट टेबल को, इसका नाम मैं दे देता हूं रीनेम सेल्स रिपोर्ट या सेल्स पर्सन, ये बना दिया जी मैंने। इस फाइल को मैं सेव भी कर लेता हूं, कल को भाई कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ ही हो जाए। इसको जाकर के मैंने एक जाकर के, और मैंने नाम दे दिया इसको, और इसके अंदर जाकर के यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर जाकर के, और फाइल का नाम दे दिया मैंने इंदौर। ये चीजें आपने स्टार्टिंग में आपने कर दी जी, और इसके बाद ये फाइल का एक नाम मैंने कर दिया। अब सेम चार्ट मेरे को एक और बनाना है, क्या करना चाहिए जी, एक और रिपोर्ट बनानी है। क्या करूं जी, यस भाई कैसे करूं, कोई शॉर्टकट बता सकते हो? तो वही उसमें से कॉपी पेस्ट हो जाएगा ना सर? कॉपी पेस्ट हो जाएगा, मतलब ये तो एक रिपोर्ट बनी ना, मेरे को तो कई रिपोर्ट बनानी है। इस टाइप की रिपोर्ट बनानी है जो आपने देखी ना, अभी मैंने आपको दिखा रहा था। मेरे को तो इस टाइप की, ये तो सेल्स बाय सेल्स पर्सन बनाई, टॉप 5 कस्टमर्स भी बनाने हैं, सेल्स बाय रीजन भी बनाना है, सेल्स बाय प्रोडक्ट भी बनानी है, मेरे को मंथ वाइज ट्रेंडिंग भी बनानी है, इतनी सारी रिपोर्ट बनानी है। ये तो एक बनी है। डेटा पे जाके पाइवट टेबल वापस से क्रिएट कर देंगे सर? अब सर दोबारा डेटा पे जाओगे, पीवट क्रिएट करोगे, ये चार्ट बनाओगे, इतना टाइम लगाने की क्या जरूरत है। इसी सीट को जाओ, राइट क्लिक करके इसको बोल दो मूव और कॉपी, सीट को कॉपी कर सकते हो। जैसे इसी को उठाओ, कंट्रोल दबा के इसको ऐसे पकड़ के और इसको साइड में छोड़ दो, एक और आपकी रिपोर्ट बन गई। इसका नाम चेंज कर दो और इसका नाम बोल दो प्रोडक्ट। अब की बार बस क्या करना है आपको, यहाँ पे गए और इसकी जगह सेल्स पर्सन को हटा दो और इसकी जगह प्रोडक्ट को यहाँ पे डाल दो। ये देखो जी आपकी एक रिपोर्ट और बन गई। कितनी देर लगेगी, बन गई जल्दी से। राइट, अब इसके अंदर अगर आपने जाकर के कुछ कलर वगैरह चेंज करना है, सो दैट कि आपका कलर चेंज हो जाए, कुछ ये हो जाए, तो यहाँ पे जाकर के इसका कलर चेंज कर दो, ये दूसरा कलर हो गया। कल को आपको अमाउंट वगैरह का कुछ करना है कि यार ऐसे नहीं दिखाने, मेरे को थाउजेंड्स में दिखाने, कुछ करनी, वो सारी चीजें आपको पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी यहाँ पे। तो ये मेरा एक दूसरी एक रिपोर्ट बन गई। सेल्स बाय प्रोडक्ट नेम की जगह कैटेगरी की बनानी है तो कैटेगरी की बना सकते हो कि यार मेरे को तो ये रिपोर्ट बनानी है, कैटेगरी की थोड़ी कम है तो कैटेगरी यूज कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या रिपोर्ट बनानी है आपने। अब तीसरी रिपोर्ट बनानी है आपने, एक और इसको उठाया, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब की बार बनानी है मेरे को कस्टमर्स की, रीनेम किया, कस्टमर्स कर दिया। इसको जाकर के मैंने फिर से सिलेक्ट किया कि अच्छा जी कस्टमर वाइज चाहिए मेरे को, कैटेगरी को हटा दिया और मैंने कस्टमर नेम यहाँ पे डाल दिया। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे कस्टमर की बन गई, मेरे को तो टॉप 5 कस्टमर्स देखने हैं, मेरे को ज्यादा कस्टमर्स का मतलब नहीं है, टॉप 5 कस्टमर। अब क्या करूं जी, टॉप 5 कस्टमर के लिए क्या करूं, कीर्ति भाई? हाँ जी सर, टॉप 5 के लिए तो ऊपर जो हमारे पास यहाँ ऑप्शंस आते हैं डाटास के अंदर, यहाँ पे मैं गया, इसके अंदर ऑप्शन वैल्यू फिल्टर में, इसमें टॉप 10 का ऑप्शन आ रहा है जी, टॉप 5 का तो नहीं आ रहा। क्या करूं, फंस गया मैं तो, मेरे को तो 5 ही चाहिए। हाँ जी, आपके पास तो इतने इंटेलिजेंट लोग आपके, देखिए इतने वो है, लीजिए आप ऑडियंस पोल करवाइए, ऑडियंस से हेल्प लीजिए, वो बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। इस टॉप 10 को क्लिक करके तो देख लीजिए एक बार। जब क्लिक किया तो यहाँ पे ये बोल रहा है टॉप 10 भी है
10 की जगह हम यहाँ पे मैनुअली 5 भी कर सकते हैं। टॉप की जगह बॉटम देखना है तो बॉटम भी कर सकते हैं। ये चीज जाकर के करने से पता लगेगी, सोचने से, वहीं से देखा दूर से, अरे यार उसके पास तो नहीं है, अरे नहीं उसके से नहीं होगा, अरे यार जाके तो देखो, वो इंदौर के अंदर वो गली के अंदर वो देखने में दुकान छोटी सी लग रही है गेट, लेकिन पीछे से तो उसने पता लगा जी 10 दुकानें जो है ना उसने, वो कई वो होता है ना, देखा होगा आपने, कई कटरे वटरे के अंदर कोई दुकान होती है, तो देखने में तो इतना छोटा सा गेट होता है, जब अंदर घुसते हो और पीछे पता लगा जी, वहां पे पता लगा जी 50 आदमियों का स्टाफ है, पता लगा जितनी वहां पे साड़ियों की दुकान है, इतनी ये चीजें हैं। चांदनी चौक में यहाँ पे आकर के देखिए, देखने में लगेगा छोटा सा, पीछे पता नहीं कितना बड़ा उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप गए, ओके कर दिया, ये देखिए रिपोर्ट आ गई। अब आप कह रहे हो जी इसको मेरे को टॉप से करना है, सॉर्ट कर दो, ये सॉर्ट कर दिया। ये देखिए पहले टॉप वाला आ गया, फिर नीचे वाला आ गया। कलर मेरे को यार ये पसंद नहीं आ रहा, इसका कलर दूसरा चेंज कर दो। मतलब जो भी काम आपको लगता है वो जाकर के आप इसमें चेंज कर दीजिए। यहाँ पे गए, या आपने कलर दूसरा कर दिया। इसी तरह से एक रिपोर्ट और बनानी है, मेरे को ट्रेंडिंग देखनी है जी। इसके अंदर गए और यहाँ पे जाकर के मैंने बोल दिया जी ये मेरे को ट्रेंडिंग देखनी है। अब ट्रेंडिंग के लिए तो मंथ चाहिए मेरे को, क्या करूंगा मंथ के लिए, इसको फेंकू यहाँ से, और जो डेट है मेरी, ऑर्डर डेट को यहाँ पे ले आया। अब जब मैं ऑर्डर डेट को लेके आया यहाँ पे, ये ऐसी डेट आ गई जी, इतनी लंबी चौड़ी चार्ट, ऐसे तो पागल हो जाएंगे चार्ट को देखने में। 1 जनवरी से लेके, यस भाई ठीक लग रहा है ये चार्ट, 152 लाइन का चार्ट बन जाए ये, ऐसे ये कीड़े मकोड़े की तरह नजर आएगा, अच्छा लगेगा आपको? नहीं सर। आपका बॉस होगा, मैं तो बॉस होगा तो मैं तो इसको दे करके मारूंगा, चल भैया तू अपना एक काम कर, पेपर डाल दे, तो अपना हिसाब ले ले, और यार मेरे को नहीं रखना ऐसी कंपनी। यार तुमने पता नहीं कौन यार, हम तो सोच रहे थे यार तुम बढ़िया से मतलब ट्रेनिंग व्रेनिंग तुमने तो डमी वमी कर रखी लगता है कुछ। सर ग्रुप कर देंगे मंथ वाइज। ग्रुप कर देंगे। देखिए अब ये देखिए, अब आपका दिमाग जो है ना चलना स्टार्ट हो गया। इस पे गए, राइट क्लिक किया, ग्रुप पे गए, आपने बोला ग्रुपिंग, किसके बेस पे, मंथ्स के बेस पे, मंथ दबाया। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, देयर इज ऑलरेडी डाटा इन इंदौर डैशबोर्ड सेल पर्सन, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? यस कर दो। क्या ये बोल रहा है जी, इसके अंदर ये जो डाटा है यहाँ पे, इसके अंदर हम गए कि क्यों इसको ये काम नहीं कर रहा ठीक से भाई, इसको मैंने यहां से किया, फिर से मैंने ऑर्डर डेट यहाँ पे डाल दी। ओहो, ये कुछ जो है ना, कई फाइल ये खुली हुई थी, आज मैंने इसको काफी टाइम से ये कर रहा हूं। तो चलिए जी कोई बात नहीं, एक बार ये दोबारा से एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइप की प्रॉब्लम आपके पास आती होगी, क्योंकि मैंने कई सारी फाइलें पहले से ही खोल रखी थी, और कई बार कई चीजें खोल देते हैं तो इसके कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए आपको अपने सिस्टम को, जो फाइलें आपकी यूज में है, केवल वो फाइलें आपको यूज करनी चाहिए। ये देखिए मैंने कितनी सारी फाइलें यहाँ पे खोल रखी पहले से ही, इसलिए वो कहीं ना कहीं इशू आ गया जी इसके अंदर। अब ये देखिए जी, ये यहाँ पे इसने डॉक्यूमेंट रिकवरी कर दी, और इसके बेस पे यहाँ पे मैं ट्रेंडिंग पे आया हुआ था। तो कोई बात नहीं, इसको मैं फाइल को एक बार सेव एज करके दूसरे नाम से मैं सेव कर लेता हूँ। इसे नए नाम से कर दिया ना, इंदौर 2। ये मैंने ऐसे करके कर दिया जी यहाँ पे। अब इसके अंदर मैं गया, यहाँ पे कस्टमर भी आ गया था मेरा, यहाँ पे ट्रेंडिंग यहाँ पे आ गया था। अब इसका मेरे को चार्ट बनाना है, सम ऑफ रेवेन्यू। तो मैंने क्या किया, ऑर्डर डेट को यहाँ पे डाल दिया। ये देखिए, ये अपने आप से जो ग्रुपिंग में कर रहा था, इसने वो सेव की, तो ये ग्रुपिंग इसने अपने आप से जैन फेब आ गई। अब मेरे को ट्रेंडिंग देखनी है। ट्रेंडिंग में क्या होता है, जैसे शेयर मार्केट के रेट होते हैं, ऐसे अगर नजर आता है तो चार्ट ऐसा होना चाहिए, जो लाइन वाला चार्ट होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे गया और मैंने बोल दिया जी मेरा जो चार्ट है वो चेन चार्ट टाइप। मैंने इसको कहा जी मेरा चार्ट जो होना चाहिए वो लाइन वाला चार्ट कर दो। अब ये मैंने ऐसे चार्ट बना दिया। तो इस टाइप का जब चार्ट बना दिया, ये मेरा चार्ट ऐसे ये बन जाएगा। अब इसके अंदर देखिए मंथ भी आ गए, इसको थोड़ा सा, क्योंकि लंबाई में मेरे को ज्यादा चाहिए, तो थोड़ा सा मैं ऐसे कर सकता हूँ। इसका नाम जो है चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे ट्रेंडिंग, ये ऐसे मैं कुछ डाल सकता हूँ। तो इस टाइप से आप लोगों ने चार्ट बनाने हैं। यहाँ पे अमाउंट डालनी है, इस पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे जाकर के आप अमाउंट भी डाल सकते हो। ऐड डेटा लेबल्स, कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हो। अमाउंट्स को जैसे भाई
ये करना है आपको, नहीं जी डेसिमल्स में नहीं चाहिए तो डेसिमल्स को हटा सकते हो। ये सारे काम आपके हो सकते हैं। इस जब चीज देखोगे आपको सब चीजें पता लग जाएगी। इसके अंदर से लाइन हटानी है, बीच वाली लाइन, इसको करके ये हटा दो। इसके अंदर पता लगा जी कलर आपको डालना है यहाँ पे, तो इसमें जाकर के कलर भी डाल दो कि यार ऐसा कोई चार्ट बन जाए मेरा। ये बन गया जी, ये देखिए। तो इस टाइप की चीजें आप सब अपने आप कर सकते हो। ये चीजें आपके लिए पॉसिबल है। ये देखिए इसने अपने आप से जो अमाउंट वगैरह ऐसे कर सकते हो। तो इस टाइप से मैंने क्या किया, अलग अलग चार्ट बना लिए, क्योंकि टाइम हमने बचाना है। तो ये मैंने अलग अलग चार्ट बना लिए जी। एक चार्ट मैंने सेल्स स्टैंड का बना लिया, एक मैंने सेल्स बाय सेल्स पर्सन का बना लिया, एक मैंने टॉप 5 कस्टमर्स का बना लिया, एक मैंने सेल बाय प्रोडक्ट का बना लिया, एक मैंने सेल्स बाय रीजन का बना लिया। ऐसे अलग अलग चार्ट बना लिए जैसे यहाँ पे मैंने बनाए हैं। फिर मैं क्या करूंगा, इन चार्ट्स को उठा करके यहाँ पे जाकर के मैं बना दूंगा डैशबोर्ड। एक नई सीट बना ली। डैशबोर्ड कौन सी इंडस्ट्री से लिया गया है? यस भाई, डैशबोर्ड आप सुनते होंगे। डैशबोर्ड कहाँ पे काम आता है? वो MIS और EIS सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसके अंदर जनरली डालते अरे नहीं यार, डैशबोर्ड में पूछ रहा हूँ कौन से इंडस्ट्री से लिया गया है डैशबोर्ड। विच इंडस्ट्री डैशबोर्ड लिया गया हमने? कीर्ति भाई आप बताओ भाई, कीर्ति भाई चेयरमैन साहब। हाँ जी सर बहुत सारी डैशबोर्ड कौन सी इंडस्ट्री का वर्ड है? डैशबोर्ड आपने सुन रखा होगा ना, विच इंडस्ट्री? ऑटोमोबाइल लिख रहे हैं सर, ऑटोमोबाइल लिखे हुए हैं। तो ऑटोमोबाइल यार, आप गाड़ी तो भाई करते हो ना, डैशबोर्ड पे आप जब ड्राइवर जो बैठता है तो वो गाड़ी चलाते हुए उसको अपनी कूलिंग देखनी है, उसको अपने बाहर का टेम्परेचर देखना है, उसको स्पीड देखनी है, वो क्या उतर उतर के अपनी हवा देखनी है, कुछ भी चीज करनी है, वो बैठे बैठे सारे कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है ना जी, वहीं पे बैठे बैठे। इसलिए वो डैशबोर्ड को ले रखा है जी हमने। तो डैशबोर्ड का मतलब होता है कि मैं एक ही जगह से अपने डाटा को कंट्रोल कर सकूं, मैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स देख सकूं। तो वो मेरे को डैशबोर्ड बनाना है। तो मैं क्या करूंगा जी, यहाँ पे जो चीजें हैं मैंने इसको उठाया, जैसे ये कंट्रोल X किया और यहाँ पे जाकर के कंट्रोल V कर दिया जी। एक मेरा ये आ गई। इसी तरह मैंने सेल्स पर्सन को उठाया यहाँ से और इसको उठा करके कंट्रोल X किया और यहाँ पे डैशबोर्ड में इसको नीचे दिखा दिया। ये मेरी दूसरा एक और बन गई। साइज वगैरह को मैं कल को कम ज्यादा करना है कभी भी कर सकता हूँ, राइट। अब तीसरी चीज पे गया, प्रोडक्ट को उठाया, मैंने इसको कंट्रोल X किया, फिर से डैशबोर्ड पे लेके गया और यहाँ पे जाकर के मैंने प्रोडक्ट भी डाल दीजिए थोड़ा सा। और अगर इसकी लंबाई भाई कम है जैसे, तो यहाँ पे थोड़ा सा और मैंने इसको बढ़ा दिया, राइट। अब इसके बाद मैं किस पे गया, कस्टमर्स पे गया। तो यहाँ पे जाकर के मैंने कस्टमर्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल X किया और डैशबोर्ड में जाकर के यहाँ पे कस्टमर भी डाल दिया। तो मतलब जो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके बेस पे मैंने ये पूरे को डाल दिया। यहाँ से ऊपर इसको भी थोड़ा सा ये कर दिया, इसका जो साइज है थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, ये ऐसे कर दिया जी। जगह है मेरे पास, इसको मैंने उठा करके थोड़ा इधर कर दिया, इसकी भी लंबाई थोड़ी सी और बढ़ा दी। तो ये इसको ये थोड़ा छोटा, अगर मेरे 4 चार्ट हैं, कम चार्ट है तो थोड़ी लंबाई बढ़ा दो, अगर ज्यादा चार्ट है थोड़ी लंबाई चौड़ाई कम कर दो। ऐसे करते हुए मैंने इसको डिफरेंट डिफरेंट ये ऐसे बना दिया। पहले से कुछ बढ़िया लग रहा है जी? जी हाँ जी भाई, कुछ बढ़िया लग रहा है पहले में और अब में? जो ये चीज अभी बन के आई है, ये कुछ पहले में और इसमें फर्क लग रहा है आपको? यस सर। अब मैंने ग्रिड लाइन भी हटा दिया, हेडलाइंस भी हटा दिया, फॉर्मूला बार भी हटा दिया। ये देखिए थोड़ा सा क्लीन सा ये मेरे को नजर आ रहा है जी। ये ऐसे मैंने बना दिया जी एक चार्ट। अब इसके अंदर मेरे को क्या है, मेरा ये चार्ट बात करे मेरे से, इंटरेक्टिव चार्ट बन जाए मेरा। उसके लिए मेरे को क्या करना है, उसके लिए एक बड़ा अच्छी ऑप्शन है, और वो ऑप्शन किसी को पता है जी? जैसे मैंने ये ऑप्शन जो मैंने दिखाई थी आपको, ये ऑप्शन मेरे को लगानी है। इसके लिए मेरे को क्या बोलते हैं, इसको पता है किसी? स्लाइसर। क्या? अच्छा, ये स्लाइसर कब आए थे जी, कौन से वर्जन में आए थे? जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसके लिए एक चॉकलेट रिकमेंड करूंगा मैं, ब्रांच चेयरमैन को रिकमेंड करूंगा, एक 20 रुपए की चॉकलेट आपको पेटीएम करवाएंगे। ये चार्ट, ये जो स्लाइसर थे वो कब आए थे, कौन से वर्जन में आए थे? 2013। 2013। और किसी का कोई जवाब हो? 2010 भी है सर, 2011 भी है, 2019 भी है। तो देखिए हमारे को पता ही नहीं है जी। देखिए इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें और इतने इतने सालों से आई हुई है, लेकिन हमारे को पता ही नहीं है जी। हम उसको जो है ना, मैं बता रहा हूँ ना, बाइसिकल भाई बैलगाड़ी की तरह यूज कर रहे हैं।
ये जो डैशबोर्ड की जो चीज थी, ये एक्सेल के 2010 वर्जन में आ गई थी, 2010 वर्जन में, 11 साल पहले। जिसने 2010 सबसे पहले लिखा है उसको एक चॉकलेट दे देना। मैं सर पूछूंगा कीर्ति जी आप हाँ मत भरना, या तो पहले ही बोल देना कि नहीं जी हम नहीं भेजेंगे, 20 रुपए की पेटीएम नहीं करेंगे। सबके नंबर है आपके पास, मोबाइल नंबर। अब ये मत बोलना कि जी मोबाइल नंबर नहीं था, चलो अगली बार मिलेंगे तब दे देंगे, ऐसा मत करना जी। या तो पहले बोल दो जी हम नहीं देंगे, प्रोमिस अगर आप कर रहे हो तो देना जरूर जी उनको, ठीक है। तो यहाँ पे अब गए मैं, अब किसी भी चार्ट पे यहाँ पे जाकर के इसके अंदर मैंने बोल दिया जी इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर किसका चाहिए जी? मैंने बोल दिया सेल्स पर्सन वाइज चाहिए, या मेरे को रीजन वाइज चाहिए, या मेरे को प्रोडक्ट नेम वाइज चाहिए, जिसका भी चाहिए उसको ले लो जी। यहाँ पे ये 2 स्लाइसर मेरे यहाँ पे बन गए जी। रीजन को मैंने यहाँ पे डाल दिया, सेल्स पर्सन को मैंने यहाँ पे डाल दिया। कल को अगर आपको मंथ का भी लेना है, मंथ का भी ले लो, कोई तीसरी चीज का लेना है उसका भी ले लो, इसके कलर चेंज करने इसके भी कलर चेंज कर दो, इसका कलर चेंज करना है इसके भी कर दो। अब यहाँ पे मैं देखिए क्लिक करूंगा, क्या चीज चेंज हो रही है? कौन सा चेंज हो रहा है जी? यस भाई, कौन सा चेंज हो रहा है? सर ट्रेंडिंग चेंज हो रहा है अभी तो बस। बाकी तो चेंज हो ही नहीं रहे, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्या करूं? मेरे तो सारे चेंज होने चाहिए थे यार। अब क्या करूं? सेटिंग के अंदर होगा स्लाइसर की कुछ सेटिंग किसके साथ सेटिंग करूं भाई? स्लाइसर के अंदर एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, वहां पे शायद से सिलेक्ट करना पड़ेगा बाकी सब। तो जहां पे भी आप एक्सेल के अंदर सोच लो, जहां पे भी आप फंसते हो ना, यहाँ पे जाकर के राइट क्लिक कर दो। अब राइट क्लिक करके इसमें देखिए आ रखा है रिपोर्ट कनेक्शन, मेरे को कनेक्ट करनी है रिपोर्ट्स को। तो इसमें जाकर के आप देखोगे एक ही पिवट टेबल से कनेक्ट है, मैं इसको चारों पिवट टेबल से कनेक्ट कर देता हूं, बस ओके कर दिया। इसी तरह मैं इसमें जाऊंगा, जिसको भी मेरे को कनेक्ट करना है यहाँ पे जाकर के मैं कनेक्ट कर दूंगा, 5 हो 10 हो। अब बस इतना सा काम करने के बाद अब देखना जी, पल्लवी जी की रिपोर्ट देखते हैं क्या कर रहे हैं। पल्लवी जी की टोटल सेल 72,000 रुपए, ये ट्रेंडिंग है। सेल्स पर्सन वाइज उसकी जो ये है, टॉप 5 कस्टमर्स ये है, कौन से प्रोडक्ट में डील करती है वो ये है। साउथ रीजन में देखते हैं जी क्या है, नॉर्थ रीजन में देखते हैं जी क्या है। इस टाइप से हम जिसको भी ये देखना चाहें इसकी वो रिपोर्ट देख सकते हैं। देखिए सर बढ़िया जैसे जी। अब ये पल्लवी पे क्लिक करा तो उसका रीजन ऑटोमेटिक सिलेक्ट नहीं होगा क्या? हो जाएगा ना जी, अगर आप वो पल्लवी अगर 4 रीजन में हो तब तो वो चारों ही सिलेक्ट रहेंगे ना जी। अगर एक में होगा तो हो जाएगा सिलेक्ट, लेकिन अगर वो अलग अलग में होगी तो नहीं हो पाएगा ना सर। अच्छा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो आप इसको जैसे मर्जी प्ले कर सकते हो। इसको मैंने थोड़ा सा और इसको थोड़ा अच्छा बना रखा है, मेरी जो फाइल है इसको थोड़ा और सजा रखा है, बैकग्राउंड बना दी, इसके अंदर थोड़ा ये कलर कर दिया, इसको ये कर दिया, बस थोड़ा सा इसको देख करके। चीज वही है, कंसेप्ट वही है, इसके अंदर जो है ना चीज थोड़ी डिफरेंट हो रखी है बस। सर थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं फिर अब ज्यादा चीज कवर नहीं करूंगा ना जी। ऐसा है, देखो जी चीज तो मैं टाइम जो है थोड़ा दो ज्यादा, भाई जितनी चीज सिखाएंगे वो बस समझ में आनी चाहिए। बाकी चीजें तो 2 घंटे में भी आपकी फिनिश नहीं होंगी, 2 दिन का कराएंगे तब भी फिनिश नहीं होंगी चीजें। तो आपको उसके लिए तो सेशन वगैरह चलते रहने पड़ेंगे। और आपका तो 3 दिन की सीरीज चल रही है, कुछ छूटेगा तो कल जो स्पीकर होंगे उस वो करा देंगे आपको, परसों फिर कोई करा लेना आप, अगले महीने भाई फिर कभी करा लेना, राइट। अगर भाई पसंद आए तो, और लगे यार नहीं ये तो कुछ ऐसे यार इन्होंने दिखा दिया बस ऐसे ही था यार, तो कोई बात नहीं, राइट। तो ये देखिए मेरा डैशबोर्ड ऐसे बन जाएगा। I acknowledge the presence of Ankush ji, Secretary of Indore branch, and Shivaji, past chairman of Jhansi branch. Sir. चलिए जी बहुत बढ़िया। और बाकी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं सर, एक मेरा छोटा सा YouTube चैनल भी है, अगर आपको पसंद आए तो आप उसके अंदर भी जा सकते हैं YouTube चैनल के अंदर, और वहां पर जाकर के बहुत कुछ आपको चीजें वहां से मिल सकती है जी YouTube चैनल से। तो वहां पे वीडियो को आप जाइए देखिए, अगर आपको लगता है कोई भाई चीज है तो उसको आपने गाड़ी में जाते जाते भी आप सीख सकते हो, कर सकते हो जैसे, क्यों जी। और वेबसाइट के ऊपर भी बहुत सारी चीजें फ्री बीज पड़ी हुई हैं जी हमारी, तो वहां से भी आप चीजों को ले सकते हो जी। तो एक तो YouTube चैनल है, एक ये मेरा फोन नंबर भी मैं आपको दे रहा हूं, जैसे वैसे आप नोट कर लेना, फाइल में आपको दे दूंगा, मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा। गूगल पे आप सिंपली विजय डालोगे ना, विजय और एक्सेल डालोगे केवल, तो आपको सैकड़ों लिंक मिल जाएंगे, सैकड़ों चीजें मिल जाएंगी। YouTube चैनल क्या, योगा से रिलेटेड भी जो बता रहे थे कीर्ति जी, एवरी डे हमारा जो है ना योगा का सेशन भी होता है, लाइव सेशन होता है,
तो उसके लिए भी आपको जो है वहां पे काफी वीडियोज वगैरह मिल जाएगी। डेली 5:30 से लेके 6:45 बजे तक लाइव योगा होता है। पिछले करीब 480 दिन हो गए जी, एक भी दिन हमारा मिस नहीं हुआ है। 480 डेज के करीब हो गए हमारे। और वेबसाइट से आपको चीजें मिल जाएंगी जी, बहुत कुछ। एक दो चीजें मैं जो मिलेगी मैं उसके बारे में बता देता हूं आपको, जो हमारे को मिलेगी। एक है यूट्यूब चैनल पे मर्ज मल्टीपल सीट्स फाइल्स, आरडीबी मर्ज। मतलब आपको 100 फाइलें हैं, 50 फाइलें हैं, उन सबको मर्ज करना है, इकट्ठा करना है। तो आप सिंपली जाओगे, 10 मिनट की वीडियो है, उसका लिंक है, यूटिलिटी आपको मिल जाएगी, और उस यूटिलिटी को डाउनलोड कर लोगे तो आप सैकड़ों फाइलों को या सीट्स को 1 मिनट के अंदर इकट्ठा करके मर्ज कर सकते हो, सिंगल फाइल में कर सकते हो, बिना फाइल खोले कर सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया, हमारी जो है हजारों उसको लोग देख चुके हैं और इसको यूज कर रहे हैं। तो इसी टाइप की चीजें बहुत कुछ है जो आप हमारी वेबसाइट से चीजों को ले सकते हो। वेबसाइट पे अगर आपको जाना है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीज ये मिल जाएगी जी। जैसे यहाँ पे आप जाओगे। क्वेश्चन हो रहा है। क्या जी? मेरा एक क्वेश्चन भी है हाँ हाँ सर। पाइवट टेबल जब अपन बनाते हैं नॉर्मल, उसमें जैसे अमाउंट पे जाके अपन डबल क्लिक करते हैं तो हाँ, उस पे उससे रिलेटेड एक सीट खुल जाती है। अच्छा, तो बिल्कुल। वैसे अगर 4 सीट को एक ही सीट में खोलनी हो तो 4 क्या, सीट को, जैसे अपन ने मंथ वाइज पाइवट बनाई हाँ हाँ तो मंथ के अमाउंट पे गए, अपन डबल क्लिक करा तो अप्रैल मंथ की पूरी शीट खुल जाएगी, हाँ हाँ है ना। ऐसे अपने को अप्रैल मई और जून 3 महीने की खोलनी है हाँ एक साथ। हाँ हाँ। तो उसके लिए बहुत बढ़िया तरीका है जी। उसके लिए आपको क्या करना है जी, ग्रुप जैसे आपका ये डेटा है, ग्रुपिंग के अलावा बताना सर। नहीं तो ग्रुपिंग ही तो करनी पड़ेगी ना। और उसके अलावा आप जो तरीका है उसका जो है ग्रुपिंग में जाओगे, उसको मंथ की जगह क्वार्टर की ग्रुपिंग कर दो उसके अंदर, और उसके क्वार्टर की वैल्यू के ऊपर क्लिक करोगे, वो क्वार्टर की खुल जाएगी आपकी, तीनों की इकट्ठी खुल जाएगी आपकी। आप इसके अंदर जब जाओगे, इसके और अंदर जब पिवट टेबल बनाओगे आप इसके अंदर, और आपने इसके अंदर मंथ की, जैसे जो ये ग्रुपिंग है, सेल्स बाय रीजन है, सेल्स ट्रेंड है, जैसे यहाँ पे ये मंथ आ गया, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, आपने बोल दिया जी ग्रुप करना है मेरे को। इसके अंदर मेरे को आपने बोला जी डेज पे नहीं चाहिए, मेरे को क्वार्टर पे चाहिए जी। क्वार्टर पे आपने ग्रुप कर दिया जी, तो यहाँ पे क्वार्टर का बन गया। अब अगर क्वार्टर पे कर दिया, इस पे जाकर के डबल क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये जो खुलेगी आपकी अप्रैल में जून की तो खुलेगी, सेकंड क्वार्टर के अंदर जो खुलेगी, यहाँ पे आप देखोगे अप्रैल भी आ गया, मई भी आ गया, जून भी आ गया। अब आप कह रहे हो कि जी इसके अलावा बताना जी। और अब सर इसके अलावा तो भाई कुछ हाँ, मैन्युअली आप जो है ना, फिर तो अप्रैल आप और कर लो मई जी। दो ही सीट खोलनी हो तो अप्रैल और मई खोलनी होगी तो फिर उसके लिए, जैसे इसके अंदर ये नहीं बन रहा, तो आप 2-2 महीने की, जैसे कोई ग्रुपिंग है, जैसे इस टाइप की ग्रुपिंग करो, या फिर एक कोई ना कोई इसके अंदर जो आपका डेटाबेस है, उस डेटा के अंदर आप कोई मास्टर बना लो कि मेरे को अप्रैल और मई का एक नाम दे दिया आपने कि अच्छा जी मेरा अप्रैल है, और एक मेरा मई है, और एक मेरा जून है। तो जिसका भी ट्रेंड होगा, तो एक इसका अप्रैल में कोई कॉमन नाम दे दो आप, और उसको यहाँ पे एक नया हेल्पर कॉलम यूज करना पड़ेगा आपको। वो हेल्पर कॉलम लगा के रखा, उसके बेस पे आपकी बन जाएगी वो पिवट, वहां से बन जाएगी। वो तो डिपेंड सर, कुछ जनरली तो क्या होता है बाय डिफॉल्ट, तो जैसे क्वार्टर बनाने को है, अब आपको 2 महीने की चाहिए, तो वहां पे वो क्वार्टर तो बनेगा नहीं। उसके लिए फिर आपको एक जुगाड़ मिल जाएगा। ये किस लिए फॉर्मूले काम आएंगे, किस लिए हमारे पास जो है ना कॉलम काम आएंगे, वो जो भी चीज है आपको उसके बेस पे आपका हो जाएगा काम सर। ठीक है सर। थोड़ा एक्स लुकअप के बारे में बता दीजिए। किसका जी? एक्स लुकअप। एक्स लुकअप ठीक है जी, मैं 5 मिनट में एक्स लुकअप भी कर देता हूं। तो मैं आपको एक चीज बता रहा था कि एक जो वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे, तो यहाँ एच पे लुकअप बोल रहे champexcel.com पे जाओगे, तो यहाँ पे जाकर के आपको ये सारी चीजें डाउनलोड जो करनी है, फ्रीबीज सेक्शन है, यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी जी। कोई उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे एक्सेल टूल्स, ये शॉर्टकट कीज आपको चाहिए मिल जाएगी। मर्ज मल्टीपल फाइल्स, वीडियो भी देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। जीएसटी रिको करना है आपको, 2A 3B का उसका टेम्पलेट मिल जाएगा। आपको जीएसटी पैन नंबर से जीएसटी निकालना है, बिना गवर्नमेंट को अप्लाई निकालना है, हजारों लोग यूज कर रहे हैं। ये फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए, पैन नंबर से आपको जीएसटी मिल जाएगा। गवर्नमेंट को अप्लाई कर देना, वही जीएसटी नंबर आएगा आपका। फिगर और अमाउंट इन वर्ड्स, कैलेंडर ईयर को फाइनेंशियल ईयर में कन्वर्ट करना है। ये सारी की सारी चीजें, एडजस्टमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस फ्रॉम डेटर्स एजिंग ऑन फीफो बेसिस, कन्वर्ट, ये फिल्टरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, ये देखिए 26 AS टीडीएस रिकंसिलिएशन यूटिलिटी, बहुत ही बढ़िया चीज बनाई है हमने।
एक ये जो है ना TDS की रिकंसिलिएशन यूटिलिटी है, 1 मिनट के अंदर आपका जो डाउनलोड करते हो पोर्टल से जो उसकी टेक्स्ट फाइल होती है, उस टेक्स्ट फाइल को ये आप बस यहाँ पे इंपोर्ट 26AS करोगे और वो उसको टेबुलर फॉर्म में बना देगा। रिकंसाइल करने के लिए बहुत इजी है, 1 मिनट में आपको कर देगा। ये सारी की सारी चीजें आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो जी। अब आपको एक चीज हम कवर कर लेते हैं जी, लास्ट चीज कवर कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है टाइम को देखते हुए, और फिर अगर भाई कीर्ति जी से प्रार्थना करेंगे कि भाई कुछ और अगर टाइम देंगे कभी तो फिर और चीज सिखा देंगे आपको, बाकी नहीं तो कोई बात नहीं। अब कल वैसे आपके स्पीकर जो आएंगे, और एक स्पीकर कल भी आपके आए थे, तो वो चीज तो आपको बढ़िया सिखाई रहे हैं, आप कुछ उनसे रिक्वेस्ट करना जी। तो VLOOKUP और XLOOKUP बता देता हूं जी कि क्या चीज है थोड़ा सा। कीर्ति भाई 5-7 मिनट और लगा सकते हैं ना जी? जी सर। कोई मतलब बता देना। देखिए ऐसा नहीं है कि, बाकी तो मैंने बताया ना मंडे को भाई इंदौर आकर के आपको फोन तो जरूर करूंगा, क्योंकि भाई दिल्ली से फोन करूंगा थोड़ा टाइम लगता होगा फोन में, एक इंदौर से एयरपोर्ट से फोन करूंगा तो आपको थोड़ा जल्दी फोन मिल जाएगा, आप उठा भी लोगे। वैसे फ्रेंड्स मैं मतलब जो ना कल जो है 3 दिन के लिए आपके जो प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मैं आ रहा हूँ कुछ मतलब जो ना घूमने के हिसाब से। उज्जैन का मेरा प्रोग्राम है, और भाई इंदौर का प्रोग्राम है, एक मांडवी जगह वहां का प्रोग्राम है, और जो है आप लोगों के सिटी के अंदर। तो देखते हैं अगर भगवान ने चाहा तो भाई टाइम मिलेगा तो जरूर मिलेंगे आप में से कुछ मेंबर्स को। और झाबुआ के अंदर भी हमारा भाई 1 दिन का प्रोग्राम है। तो ये देखिए ये VLOOKUP जो था ना जी, VLOOKUP की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी दूर हो गई है XLOOKUP के थ्रू। लेकिन XLOOKUP कौन से वर्जन में मिलेगा, किसी को पता है जी? XLOOKUP कौन से वर्जन में आया है बताओ? हाँ जी 365। अच्छा, कोई और भी किसी का आंसर है 365 के अलावा? VLOOKUP तो भाई सालों से है, वो तो 2003 में भी था, 2000 में भी था, सब में था। XLOOKUP कौन से वर्जन में आया है? एनीबॉडी? कोई जवाब नहीं दे रहे जी। चलिए जी, तो आप 365 बोल रहे हो तो आपको ही मान लेते हैं जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया। XLOOKUP जो आया वो 365 वर्जन में ही आया, ये केवल 365 में ही चलेगा, इसलिए आपको 365 लेना चाहिए। VLOOKUP की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम तो दूर हो ही गई, उसके अलावा कम से कम अगर मेरे को पूछो VLOOKUP से XLOOKUP जो है 10 टाइम्स पावरफुल हो गया होगा, 10 गुना पावरफुल हो गया होगा। V में तो एक ही V थी और X के अंदर 2 V बन गई जी, और वो भी डबल हो गई, तो 1 और 1 11 हो गया। आप ये समझो V के नीचे V लगा दी इन्होंने, और V के नीचे V लगा दी तो X बन गया डबल V, मतलब ये बन गया जी, इसलिए इसका नाम रख दिया XLOOKUP। ये देखिए 2 V आ गए इसके अंदर, एक ऊपर और एक नीचे, राइट जी। अब इसके अंदर देखिए VLOOKUP की प्रॉब्लम बताओ जी, क्या क्या प्रॉब्लम है VLOOKUP की? कोई बता सकता है VLOOKUP की क्या प्रॉब्लम थी? क्या जी? लेफ्ट कॉलम लेफ्ट से राइट की तरफ काम करेगा। लेफ्ट से राइट के लिए काम करता था वो राइट से लेफ्ट काम नहीं करता था, तो वो प्रॉब्लम इसकी दूर हो गई। जैसे मैं VLOOKUP लगाऊं, यहाँ पे मैंने नॉर्मल VLOOKUP लगाता हूं, यहाँ पे मैंने VLOOKUP लगाया और इस डेटा को मैंने सिलेक्ट किया कि मेरा ये डेटा है जी, ये मैंने डेटा दे दिया कि ये मेरा डेटा सिलेक्ट किया, मैंने F4 किया और मेरे को मार्क्स निकालने हैं, तो तीसरा कॉलम दिया, इसके बाद 0 डाल दी, ये VLOOKUP इसने मार्क्स मेरे को दे दिए कि ये मेरे मार्क्स आ गए जी। अब यहाँ पे ये डेटा आ गया। अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसमें गलती से कॉलम इंसर्ट कर दूं यहाँ पे, क्या होगा जी? मेरा रिजल्ट ठीक आएगा गलत आएगा? क्या हो गया रिजल्ट को? क्यों हो गया ऐसा? क्यों हो गया जी? हाँ जी, क्योंकि ऐसा क्यों हो गया? प्रॉब्लम है सर। क्या? रेफरेंस चेंज हो गया सर। ये जो डॉलर लगा रखे ना सर। हाँ हाँ, नहीं, क्योंकि सर अपन ने 3 लिखा हुआ है वहां पे, तो वो थर्ड कॉलम की वैल्यू पकड़ रहा है। थर्ड कॉलम को देख रहा है, तो एक तो मैंने बीच में कॉलम इंसर्ट कर दिया, ये प्रॉब्लम आ गई इसकी। दूसरी चीज इसकी प्रॉब्लम क्या आ गई, अगर मैं इस डेटा को उठा करके अगर मैं इधर रख दूं तो देखिए फिर भी मेरा डेटा में प्रॉब्लम आ गई।
ये दोनों की दोनों प्रॉब्लम जो थी, इसके अलावा तो पता नहीं कितनी प्रॉब्लम है। मतलब 3 घंटे का अभी हमने सेशन किया था पिछले हफ्ते, केवल 3 घंटे का सेशन एक फॉर्मूले पे एक्स लुकअप के ऊपर किया था, एक फॉर्मूले पे एक्स लुकअप पे 3 घंटे का सेशन, इतनी चीजें इसके अंदर आई। अब यही काम मैं करता हूँ एक्स लुकअप के लिए ऊपर, देखना जी, सेम चीज करूंगा, इक्वल टू एक्स लुकअप। एक्स लुकअप में पहले मेरे को ये चीज ढूंढनी है, मैंने इसको बोल दिया जी, ठीक है। किसमें से ढूंढनी है? अब की बार मेरे को पूरा कॉलम नहीं देना, बस एक ही कॉलम देना है जिसमें से मेरे को ढूंढना है, बस। इसको मैंने दे दिया। क्या चीज ढूंढनी है? मेरे को मार्क्स ढूंढने हैं, ये कॉलम मैंने इसको ये दे दिया। बस 3 चीज देनी है जिसको, बस मैंने 4 भी नहीं देनी यहाँ पे। तीसरा नंबर है कि 5वां है 8वां है, वो नहीं देने की जरूरत मेरे को। लास्ट में 0 देने की जरूरत नहीं है, फॉल्स देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैंने एंटर कर दिया, सेम रिजल्ट यहाँ पे आ गया एक्स लुकअप के अंदर, आ गया जी। अब देखना जी चमत्कार, सेम काम जैसे मैंने पहले किया था, इसके अंदर जाकर के मैंने 2 कॉलम इंसर्ट कर दिए। यहाँ पे तो 0 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं बिगड़ा इसका, राइट, बिल्कुल सही चल रहा है। इसी तरह से मैंने इसको उठाया और इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे डाल दिया, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, यहाँ पे ये एज इट इज चल रहा है। इवन अगर मैं इसको उठा करके यहाँ पे नहीं रखा, कंट्रोल एक्स करके मैंने यहाँ पे डाल दिया, उसके सामने भी नहीं है, अरे वाह, तब भी मेरा एक्स लुकअप काम कर रहा है। मतलब उसके सामने नहीं है, वो उसके नीचे है या दूसरी सीट पे है, तब भी मेरा एक्स लुकअप काम कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको मैं कहीं पे भी, जैसे ये जो चीज है यहाँ पे जो है, इसको अगर मैं यहाँ पे डाल दूं, तब भी देखिए मेरा एक्स लुकअप काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे मैं गया, ये देखिए ये चीज मेरी ढूंढेगा, इसमें से ये चीज निकाल करके यहाँ पे इसके आगे रख देगा कोरस्पॉन्डिंग, ये मेरा काम करेगा। तो ये इस टाइप की चीजें एक्स लुकअप के थ्रू पॉसिबल हो गई है। एरर आ गई, अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कीर्ति का डेटा ढूंढना है, यहाँ पे एन आ गया, अब यहाँ पे क्या करोगे जी? इस एन को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? एनीवन, कौन सा क्या करते हो इसके लिए? पता है जी किसी को? हाँ जी, हाँ ना तो बोल दो सर। ये जो एरर हटानी है, इसकी जगह पे हम इफ एरर का फॉर्मूला यूज करते हैं। इफ एरर लगाते हैं और यहाँ पे जाके कोमा करके 0 डालते हैं। अब उसके बाद ये क्या होता है, जब इसको डेटा नहीं मिलता तो ये 0 आ जाता है, लेकिन अगर इसको डेटा मिल जाएगा यहाँ पे तो वैल्यू आ जाएगी। अब यही काम सपोज करो मेरे को इसमें करना है, एक्स लुकअप में इफ एरर की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे चौथी कमांड मेरे को देनी है, इफ नॉट फाउंड। इसी फॉर्मूले में मैं दे सकता हूँ कि अगर नहीं मिले, एरर आई तो क्या करना है, तो 0 दे दी मैंने इसको, उसी फॉर्मूले का पार्ट है। अब ये देखिए एक ही फॉर्मूला है एक्स लुकअप, उसी के थ्रू हो जाएगा। और एच लुकअप वाला जो फॉर्मूला था हॉरिजॉन्टल लुकअप, वो भी काम आपका एक्स लुकअप कर देगा। इंडेक्स मैच वाला काम है, वो भी एक्स लुकअप कर देगा। ये सारे फार्मूले मिलकर के एक्स लुकअप आपका काम कर देगा। एक वी लुकअप हमेशा पहली वैल्यू ढूंढता है, टॉप टू बॉटम, लेकिन एक्स लुकअप से आप चाहोगे वो लास्ट टू फर्स्ट वैल्यू भी ढूंढ सकता है। मतलब आपके पास में प्रोडक्ट की लिस्ट है, सेल प्राइस आ रखी है, आज आपने प्रोडक्ट खरीदा, 10 दिन बाद खरीदा, 20 दिन बाद खरीदा, 25 दिन बाद खरीदा, आप चाह रहे हो कि लेटेस्ट प्राइस क्या है मेरे सेल्स के प्रोडक्ट की, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट भी, मतलब लास्ट वाली वैल्यू को भी एक्स लुकअप से ढूंढ सकते हो। ये एक्स लुकअप के अंदर पता नहीं कितनी चीजें हैं जो हम एक्स लुकअप के थ्रू कर सकते हैं। बट अभी टाइम होगा कभी तो हम एक्स लुकअप के ऊपर घंटा 2 घंटा 3 घंटे का सेशन करेंगे, लेकिन आप जो है मेरी वेबसाइट के थ्रू और चैनल के पास जाएंगे, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको, वहां से आप सीख सकते हो। बाकी क्वेरीज के लिए आप किसी भी टाइम मेरे को जो है इस मेल पे मेल कर सकते हो, info@champexcel.com। फोन नंबर, अगर व्हाट्सएप नंबर पे अगर आपको कोई क्वेरी डालनी है तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप के मेंबर बन सकते हो। ये वाला नंबर है 8595963941। इस पे एक बार अपना नंबर डाल दो कि आप व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हो, तो आपको जोड़ दिया जाएगा। फ्री बीज का लिंक है, ये यहाँ पे मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल का लिंक है, ये यहाँ पे मिल जाएगा। ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा जी, कीर्ति जी को भेज दूंगा। कीर्ति जी आपको भेजेंगे, नहीं भेजेंगे वो कीर्ति जी बताएंगे। तो आप सब ने इतना भाई ध्यान से, इतने बढ़िया से आपने सुना, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। करते हैं सर। और बाकी आपकी ब्रांच जो है, आपका जो सिटी है भाई, और इतनी बड़ी ब्रांच है, इतना इंदौर तो लाइक दिल्ली वाले तो इंदौर को बहुत
जब बात होती है तो इंदौर का नाम तो कि सबसे क्लीन सिटी है, देखना चाहिए, काश हमारी दिल्ली भी ऐसी हो जाए, तो ऐसा बड़ा सोचते हैं। तो देखते हैं जी, अगर टाइम होगा तो, जो अब मैं 3 दिन के लिए आ रहा हूँ, तो अगर टाइम बचेगा तो इंदौर भी घंटा आध घंटा लगाएंगे। वैसे अभी तक के हिसाब से बस केवल मेरी फ्लाइट है वहां से इंदौर से वापसी की सोमवार रात की। कल मैं यहाँ से झाबुआ जा रहा हूँ जी, शाम को मैं झाबुआ पहुंचूंगा। ठीक है जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ अगर बात है, तो 5 मिनट हम क्वेश्चन को भी दे सकते हैं, अगर मैनेजमेंट या मेरे जो कलीग्स हैं वो अगर चाहेंगे तो बताएंगे तो। हाँ जी अंकुश जी, क्या कहते हो आप? किसी मेंबर्स की कोई क्वेरी है तो सर प्लीज 5 मिनट अपन ले सकते हैं, विद इन 5 मिनट सम अप करना है। जी जी जी। कोई मेंबर्स अनम्यूट करके डायरेक्टली बोल सकते हैं सर से जो भी क्वेरी है सबकी। नहीं, और अगर आप लोगों का कोई सेशन है, कई बार होता है कमिटमेंट है, कई बार ब्रांच का कोई और भाई प्रोग्राम है, तो आप लोगों को मैंने देखिए कभी भी आप मेरे को मेल कर सकते हो, फोन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कल को कोई जरूरत होगी तो एनी डेस्क पे भी आकर के हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप, ऐसा नहीं है कि आज अगर हमारा सेशन खत्म हो गया तो उसके बाद बात ही नहीं होगी या कुछ नहीं होगी। कल भी आप लोगों का प्रोग्राम है, कल जो भाई स्पीकर होंगे तो वो भी आप लोगों की भाई डेफिनेटली जो क्वेरीज होंगी डेफिनेटली सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो इंदौर ब्रांच की ओर से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया, और निश्चित ही आप इंदौर पधारिए सर। इंदौर ब्रांच के सभी मेंबर्स आपसे मिलने के लिए आतुर हैं, और ब्रांच में भी हम जो बेस्ट जो व्यवस्था होगी वो करेंगे, और जल्द ही दूसरा सेशन हम ट्राई करते हैं कि इसी नेक्स्ट मंथ में जो है आपका सेकंड सेशन भी हम प्लान करते हैं, पूरी सीरीज करेंगे सर आपके साथ। और सभी मेंबर्स की ओर से भी जो फीडबैक आया है बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। साथ ही सभी मेंबर्स का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिनने हमें ज्वाइन किया, और कल 5:30 से 7:30 हमारा इस सीरीज का आखिरी सेशन होगा। सो प्लीज काइंडली ज्वाइन, एंड थैंक यू सो मच सर। हम इंतजार करेंगे सर आपका इंदौर में, प्लीज आप चलिए सर, इंदौर का तो मेरा मतलब शेड्यूल के हिसाब से प्रोग्राम केवल मेरी शाम का है, बाकी झाबुआ में मेरा जो है ना 1.5 दिन मेरा है, और 1 दिन मेरे को जो है उज्जैन का है जैसे, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा जो है ना भाई है टाइट शेड्यूल है। इसलिए पहले से प्रोग्राम है, कुछ हम जो है ना 5-7 लोग जो है कुछ लाइक फैमिली या ग्रुप्स में आ रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ योग का प्रोग्राम है, कुछ जो है ना घूमने का प्रोग्राम है, इसलिए आ रहे हैं जी। सर बट कोई बात किसी नहीं। भी तरह की सर कोई भी यदि सुविधा की सर जरूरत हो तो प्लीज आप बताइए। हाँ हाँ, अरे सर बिल्कुल बिल्कुल, अरे सर बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों ने देखो जी, आज से हमारा कल से स्टार्ट होना था, आज ही ऐसा लग रहा है मैं तो इंदौर में आप लोगों के साथ ब्रांच में बैठा हुआ हूँ और इतना बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं आप सबके साथ। तो बहुत अच्छा लगा जी, आपकी ब्रांच में बहुत बढ़िया लोगों ने इंटरेक्टिव सेशन बनाया और मेरे को बड़ा अच्छा लगा। काफी अच्छे लाइक जो ना भाई काफी बढ़िया प्रोग्राम्स वगैरह आपके होते रहते हैं, तो लोग जो है काफी अपडेट है, काफी अच्छा लगा मेरे को। बिल्कुल सर, एक बार फिजिकल मोड में भी सर जल्दी हम प्लान करते हैं आपका एक प्रोग्राम। तो पुनः आपका धन्यवाद सर, और सभी मेंबर्स का पुनः धन्यवाद। कल 5:30 से 7:30 हमारा आखिरी सेशन होगा, सो प्लीज ज्वाइन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, थैंक यू। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ जी, बाकी अरे नहीं ठीक है सर, जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर आपका।